Assalamu alaikum ladies and gentlemen, this is Mao Shijaz. You're watching me on my YouTube channel and the Expat Story. मेरे साथ हमेशा की तरह talking about Pakistani dramas, and our view is always as expats as diaspora. So that's why important to remember as you watch our YouTube channel before somebody ends up complaining, why are you using the word diaspora? Saraf, thank you so much for giving me your time. I know you're not in US, you're in England right now dealing with some family concerns. So thank you for giving me your time. How are you? Oh, it's How? a pleasure. Yeah, hope you've I know you've it's been because जब बंदा फैमिली के साथ होता है तो इतना आसान नहीं होता हम्म। बहुत सारी चीज़ों का कैचअप करना। सो गाइज हमें पहले से इसका डिस्काउंट दे दीजिएगा। सर अब स्टार्ट कर लेते हैं आवर फेवरेट शो मुअम्मा। मुअम्मा कैसा लगा आपको? I mean, I've continued to be impressed. I was kind of a little disappointed. Oh, ho, घरेलू मसले मसाइल. Then I realized the गरीब जो writers हैं, what can they do? हाँ, उनको पता उनका main audience हम हमारे टाइप की हाउसवाइफ्स या घरेलू है, तो उनको भी इंटरेस्ट करना है, स्टोरी भी अपनी वो जो दिल में उभर रही होती है उसको भी बताना है. सो एज राइटर्स हाँ। yeah, I mean, it's such a dilemma because you have हम्म। to balance commercial and artistic concerns. हम्म। So, Imran Nazir, salute to you. You हम्म। managed to actually write in better terms. मैं कहती हूँ कि he's handled it better than a lot of female writers. ही हैज आई मीन इन एनी फीमेल राइटर जो एटलीस्ट हमारे आजकल की मेजोरिटी फीमेल राइटर्स की बात हो रही है, Hmm. नॉट एवरीवन। मेजोरिटी ऑफ द फीमेल राइटर्स वुड हैव टर्न्ड हर इनटू सम काइंड ऑफ क्रेजी वैम्प विद Hmm. नो rhyme or reason. She's doing things for no rhyme or reasons. Here I'm glad that Imran Nazir has had he's had a lot of like he's added a lot of nuance, and I think सबा कमर को भी इसका क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मैं इस कैरेक्टर में अवार्ड अवार्ड मैं उनके कदमों में इस वक्त बैठी हूँ और उनको देख रही हूँ कि मास्टर क्लास इन एक्टिंग. masterclass after masterclass after masterclass after masterclass. Like every scene she's in is a masterclass. Like I think it's one of those performances, it's one of those shows that you can show them in teaching, in acting school and teaching classes. Like you can show that if you want to portray a layered complex character, this is how you do it. Like there's a scene where she's like very flattering, like looking at herself very flatteringly because like Junaid has She's complimented pretty, her. वो Yeah, birds नहीं preening like a कहते. bird. Yes, yes, Yeah. she's preening like a bird. And then suddenly she recalls being slapped by the husband. Oh my God, she's so brilliant. She is so brilliant in that scene. Like she's a phenomenon, I think. You know what? And I think this is so rare कि एक विलन को अपनी vulnerabilities दिखाना, राइट? कि आपको पता है, और बाय द वे उसकी एक्सक्यूज नहीं दिया इमरान नजीर ने उसे कि हाँ कोई बात नहीं इस पे, क्योंकि हमारी जो खवातीन राइटर्स हैं, सम टाइम नॉट ऑल बट अ फ्यू ऑफ दम ना, कोई बैड बिहेवियर औरत से होता है, वो बिकॉज दे नो व्हाट द ऑडियंस इज लाइक, इमीडिएटली एक्सक्यूज दे देती हैं. Hmm. इसका तो बचपन ऐसा है, उसका बाप ऐसा था, फलाना है. तो शी नो शी इज इन द रॉन्ग, तो एक्सक्यूज नहीं दे रहा उसे इमरान नजीर. आई रियली अप्रिशिएट दैट मॉरल क्लैरिटी. I do. And I also feel like with characters like these, you have to show choice. जब आप चॉइस दिखाते हैं ना तो आप विलन की विलनी एस्टेब्लिश करते हैं। क्योंकि हीरो और विलन में क्या फर्क होता है? चॉइस। आपकी जिंदगी भी खराब हो सकती है, मेरी जिंदगी भी खराब हो सकती है। एक बंदे की लाइफ में हार्डशिप आती है और एक बंदे की लाइफ में हार्डशिप नहीं आती है, या चलें दोनों की लाइफ में हार्डशिप आती है, लेकिन वो क्या चूज करते हैं? दो लोग गरीब होते हैं, एक बंदा क्रिमिनल बन जाता है, एक बंदा क्रिमिनल नहीं बनता है। कैसे हो जाता है ये? तो यही तो डिफरेंस है बिटवीन अ हीरो एंड अ विलन। कई दफ़ा आपने अगर कॉमिक बुक्स अगर आप पढ़ते हो या आपने वो मूवीज़ देखी हो, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, जो भी, तो उस तरह के हम जो डायलॉग्स पढ़ते हैं, या हैरी पॉटर के जी विद ग्रेट पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ योर चॉइस दैट मेक्स यू, इट डिफरेंशिएट्स between a hero and a villain. I think that it a lot of times, and it's very subtle. I hope that people are catching on because I am in the show. It's very subtle when he shows that, look, terrible things happen to terrible people. What do they take from it and how do they move on from it? Like I feel like Shah Jahan's character is an attempt to establish that he is somebody who is like, अगर आप और props to Shakil Khan, उन्होंने बहुत pristine colors उसको दिखाए. The grading is much lighter and the lights are much brighter, and he's shooting in a lot of outdoors when he. Yes, I hadn't picked up on that, but yes, you're quite right. Yeah. So I think that is a way to, like, when things were good.
and what life could have been had she not taken those choices, had the parents not taken those choices, had her husband not taken those choices. And I think that वही बात जो मैंने पहले भी की थी कि you need to see the pivots that took Jahara to the point that she is. And Shah Jahan is a reminiscence of that time when things were good, when life could have been Innocence good for lost. her. Innocence lost. Innocence lost, yes, absolutely. And I think that the beauty of Moma is that it covers all its bases when it Hmm. comes to a character like Jahara, क्योंकि वही आपकी वाली बात कि हमारे राइटर्स कभी कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं देते. नहीं, वो एकदम ना विलन को बेचारा, खासकर लेडीज को बेचारा बना देते हैं। और वो हम लोग कहते हैं ना मर्दों का, आज विल विल कम टू इट, मेरी जिंदगी है तू में, बेचारा तो सबसे ज्यादा बेचारा जो वो कामयार है। चलो शक्ल अच्छी है, साइकोपुकी. मैं माफ किया, लेकिन बाकी ये है कि देयर इज नो बेचार की देयर, राइट? आई मीन, इफ अगर बिलाल अब्बास वाज नॉट प्लेइंग हिम, आई वुड से इट वाज अ विलन। ऑफ कोर्स. अमरीश पुरी प्ले टेरिबल। कर रहे होते, शफकत चीमा प्ले कर रहे होते, क्या करते आप उसको पुकी Yeah. कहते. वही You know, नीचे नीचे वाला कोट ना कि किलिंग अ कॉकरोच एंड किलिंग अ बटरफ्लाई हैज डिफरेंट मॉरल्स बिकॉज मॉरल्स हैव एस्थेटिक्स. but that's 100% true, and I think that's a big test. वो कहते हैं ना किस कई किस्म के टेस्ट होते हैं, and Hmm. this one I always apply, like the Bechdel test, right? The Bechdel test, yeah. Right. And I think we should have a name for this test. Ke if it was Madan Puri or Shafkat Cheema playing this role, would he still be the romantic hero, Yeah, right? yeah, yeah, yeah. I think we should call it the Pookie test, like the cutie Pookie test. Would it be a would Madan Puri be a cutie Pookie if he did this, or would be a psycho Pookie? Right. सो यू नो जैसे वो हम अक्सर कहते हैं ना कि वो मडोना है या वो कौन सी है, वो कौन दूसरा जो एक पैरेलल है जो मैं नाम नहीं ले सकती, Yeah, लेकिन ये या तो वो वाला जो डाइकोटमी है वो हम चेक कर लेते हैं कि साइकोपुकी है या क्यूटीपुकी है, कौन सा है, डिपेंडिंग ऑन हाउ क्यूट यू आर. So, but just, I mean, I have so much to say, yet I have nothing to say about Mama because I think it's like a pretty strong product in every way. I think that Hmm. what I love how Ali Ansari is playing it is that he's playing Very it light. Have you noticed how very light light, it is? very. Yeah. I think that the scariest villains are the realist ones. Don't you Hmm. think so? And I think that's what's connecting about his character because he's such a real guy. And because we've seen real guys like him do harkats like Hmm. these, that's why it's such a immediate connection कि वो हमने देखे हैं ऐसे मर्द यार. हमने देखे हैं ऐसे मर्द जो इतने क्लियर क्लीन कट अच्छे प्यारे साफ सुथरे और तमीज से बात करने वाले होते हैं और वो क्या क्या कर रहे होते हैं. There is like, and this is the, I go back to the writer each हम्म. time. But, ये है ना कि everyone under the director का कमाल है, शकील हम्म. खान उनका नाम है ना, जी जी. right? कि every actor understood the assignment and took a light hand. अगर वो हीरो है शाहजहान, right? And by the way, Usman Mukhtar looking very handsome in this. हम्म. And he's playing it lightly. वो ऐसे वो दुखी प्रेम नगरी वाला ना, मैं तुम्हारे हाँ, और बगैर। ड्रामेटिक ओवर ड्रामेटिक भी नहीं, Yes. मैं ढूंढ के Yeah. लाऊंगा. जी जी कहाँ है, जहाँ रहा कहाँ है भाई, Yeah, आराम yeah. से रिलैक्स करो, हाँ, इंसान के बच्चे हो तुम. अली अंसारी की विलनी वेरी लाइट टच। अच्छा, एंड यू कैन टेल कि अली अंसारी की अट्रैक्शन टुवर्ड जीजी ठीक है, फैसिनेटेड है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि जीजी के पैसों से ज्यादा फैसिनेटेड है वो। जीजी की शक्ल हम्म. तो जाहिर है, इवन आई एम फैसिनेटेड टू विद इट, बिकॉज सबा कमर इज शेफ के हसीन, so हसीन, हसीन, right? हसीन. And she looks, she's projecting that femme fatale image so हम्म. beautifully हम्म. without being, anything Don't unesthetic. you admire our Mm, actresses? They have mm, not come from acting. बस सबा कमर को बचपन से देख रहे हैं हम लोग. mm. They have not studied in acting schools. They have not even Some had of them those have platforms. Some theater, of them some have have, सब, लेकिन yeah, मायरा, महवेश, सबा, yeah. सज्जल, यमुना, इन्होंने ये तो बचपन से हम इनको देख रहे हैं, 20 20 18 Yeah, I 18. think Maura came from theater. I think वो कुछ उन्होंने theater थिएटर का भी काम। सदफ क्या मतलब, मैं कहती हूँ बड़ा कमाल है हमारे एक्टर्स का जो टेलीविजन पे जो Definitely. नेचुरल एक्टिंग ये लोग करते हैं, मावरा इंक्लूडेड एंड सब भी. मतलब मैं कहती हूँ कि बड़ी इनकी बात है कि ये कितना रॉ और कितना कम अमेजिंग Mm, लेवल का टैलेंट है कि ना ये किस अच्छा
हम इंडिया से जब कंपैरिजन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इंडिया में जिस तरह के एस्टेब्लिश्ड एक्टिंग स्कूल्स हैं, जो इतनी पुरानी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है उनकी, हमारी तो नहीं है। हमारा टेलीविजन ही रहा है, जो टेलीविजन रहा है, हाँ वो एक बड़ी स्ट्रांग इंडस्ट्री रही है, लेकिन वो भी उस लेवल की नहीं रही जितना पैसा इंडिया में फिल्मों में है। हमारे टेलीविजन में इतना पैसा कहाँ है? लेकिन लुक एट आवर एक्टर्स। The flip side of that is, and this is the strange dichotomy, right? That in India, wo looks or glamour is more important than any kind of acting ability. Now, या it मोस्टली didn't used to यस, be. It didn't used to be, इट डिडंट but यूज्ड टू बी। recently I'm seeing this, right? And it's very hard for, I mean, जो थिएटर टाइप की एक्ट्रेस वो उसको असली आर्ट एक्टर्स हैं। फिल्म, आर्ट असली एक्टर्स तो बेचारे फिल्म। हरास हो रहे होते हैं वहां पे, लेकिन मैं वैसे बात कर रही हूँ कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी एक्टर्स हैं उनका कमाल ये मुझे लगता है, जो इंडिया में मुझे लगता है कि उनके जो बड़े एक्टर्स थे उनको उन्होंने कहीं पीछे छोड़ दिया है। सो आई फील लाइक जो उनके बड़े एक्टर्स हैं ना, नसीरुद्दीन शाह साहब बेचारे अभी उनको पीछे पड़ गए थे सब उनके, तो ये वाले वो एक्टर्स थे जो, ट्रैवल थे। हम्म। जी, जो इनके इतने अच्छे उनके इंस्टीट्यूशंस थे उनको उन्होंने साइलेंस कर दिया है, ब्लैकलिस्ट कर दिया है, उनको काम नहीं, मतलब बेचारे यार रहमान के पीछे पड़ गए थे फिर। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारे एक्टर्स बेचारे, डिफरेंट स्ट्रगल्स हैं इनकी, क्योंकि ये स्ट्रगल है कि भाई इंडस्ट्री उतनी ग्रोथ नहीं है उसकी। अलबत्ता जो वहाँ पे इतने बड़े एक्टर्स, इतनी बड़ी इंडस्ट्री, तो वहाँ पे वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, अनान्या पांडे बेचारी, मैं कुछ बुरा नहीं मैं उनको कह रही, शी इज़ वर्किंग हार्ड, लेकिन उस लेवल की तो वो नहीं है ना। एंड आई फील लाइक वो वाली बात आपकी बड़ी ठीक है कि एक ज़माने में एस्थेटिक्स पे थोड़ा फोकस, ऑब्वियसली इट्स एन एस्थेटिक बेस्ड इंडस्ट्री, लाइक माधुरी प्यारी लगती थी, लेकिन माधुरी बड़ी सिंपल होती थी। श्रीदेवी, और ये बड़ी, पिछले कुछ दिनों में मैंने उनका कोई क्लिप भी देखा था फिल्म फेयर का, बड़ा सादा सा अवार्ड हो रहा है, बड़ी सादा सादा कपड़े आके उन्होंने स्टेज पे आके उसने वो, हार्डली शी इज वेयरिंग एनी मेकअप एंड शी जस्ट टेकिंग द अवार्ड, एंड अब तो भाई इट्स लाइक इट्स क्रेजी नाउ, एंड सोशल मीडिया हैज मेड इट वर्स। एनीवे, कमिंग बैक टू सबा कमर। Yeah, I think Sabha Kamar, have you noticed how many tools she is using या to project her? And this is what I keep reminding, sometimes हम लोग complaints करते हैं, ये क्या blow dry हुआ, which we will come to, बाल इतने बने हैं, जहां उन्होंने perfect बनना है वो बनती हैं, and when हम्म she, अच्छा, this is what I love about her looking in the mirror. कभी हम्म वो शैतान लगती हैं, कभी वो फरिश्ता लग रही होती हैं, हाँ and she keeps switching personality, right? हम्म मैंने तो नहीं चाहा था कि ऐसे हो, लेकिन अगर हो गया तो मैं क्या करूं, वेरी गॉड लाइक। हम्म And you can tell that this, I mean, you as a psychologist can perhaps speak to this, right? हम्म That what is on with her mind, because this is not a mentally stable person. No, 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 no. I really hope people don't think that she's some kind of mastermind. I think she's not a mastermind. I think she's a very flawed villain. And by flawed villain, all villains are flawed. But by flawed villain, I mean that she's not going to go. A lot of her plans fall apart. Like, I don't think she planned the miscarriage. I think she just wanted to scare her Right. and like just shoo her off and make her realize that she's in a vulnerable position. But वो तो और vulnerable हो गई बेचारी. And when that happens, she grapples with her morality. She grapple, and by morality, I mean जो कुछ Okay, level of nothing, yeah, look, हाँ not जो, necessarily morality, right? मतलब जो कुछ लेवल का उसके अंदर कॉन्शियंस है ना, जहारा Yeah. के अंदर, वो उसके साथ एकदम वो जाग जाता है कि वो कहती है कि एक मिनट, ये मेरे से क्या हो गया है। अच्छा, इसमें कभी कभी जैसे आपने कहा ना कि कभी कभी वो पूरी शैतान लगती है, जब वो बैठ के फ्लर्ट कर रही होती है ना उसके साथ, जुनैद के साथ, मुझे प्रॉपर शैतान लग रही होती है वो उस वक्त। लेकिन जब वो अकेले बैठ के, या वो जब उसके सामने कैसी भीगी बिल्ली बन जाती है, वो जो सैयद जबरान के कैरेक्टर से जो मिलने, सरमद नाम है उसका गालिबन, सरमद से वो मिलने जाती है, तो वो जब वहाँ जाती है और वहाँ पे जब उससे मिलती है और बात करती है, तो वो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने दे दिए, अब और तो ऐसे उसकी टोन ही बदल जाती है। तो खैर वो तो द पावर ऑफ सबा She's सबा playing कमर। with him. शी इज She's प्लेइंग। what this is what men do, isn't it? Right? If you flip the characters, I was thinking about this because Ali Ansari ka character, which is fabulous work from Ali Ansari, very underestimated actor, right? And I'm या not, you know, he वो देखो ना मायरा के साथ कैसे भोला बना होता है, and then when he's with Sabah Kamars, is like कैसानोवा। Mm, right? And you're like, wow, but we expect it from men, right? अब वो हम्म सबा कमर का कैरेक्टर वही कर रहा है, ऐसे कई बार वो बिल्कुल सीधी होती है, कई बार वो ऐसे होती है, एंड यू डोंट एक्सपेक्ट दैट, क्योंकि हमें बताया जाता है ना कि औरतें जो है ना वो तो बस एक फरिश्ता होती हैं, तो यार डीमन,
right? Bad हम्म woman or good woman. And हम्म I love this gradient of behavior. हाँ हाँ। अच्छा, द ग्रेडियंट ऑफ मोरालिटी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर हम ये देखते हैं, अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आप सही क्या है गलत क्या है, जैसे उसकी माँ भी जो है, सबा की जो बैकग्राउंड भी जब आता है तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि सबा के बैकग्राउंड में आपको ये दिखता है कि माँ भी किसकी मुजरिम है वो, अपने हालात की मुजरिम है या अपनी बेटी की मुजरिम है। मुझे लगता है कि ये जो औरतें होती हैं, जो हम कफील पे जब आएंगे तब हम बात करेंगे कि आप अपने हालात का, वो कहती है ना वो, ये तो किस्मत था, तो कहते हैं इंसान भी बड़ा अजीब होता है, जब खुद से कुछ चीज़ नहीं होती है तो किस्मत पर डाल देता है। ये डायलॉग है ड्रामे में जो मुझे बड़ा पसंद है, मुझे हाँ बहुत अच्छा, मुझे ये एटीट्यूड लगता है जब राइटर इस तरह की चीज़ दिखाता है। क्योंकि कफील पे आ जाएंगे बस थोड़ी देर में, कि मुझे लगता है एक सेंस ऑफ रेजिग्नेशन जब हम ले आते हैं ना हीरो के अंदर, या डिफीटिज्म आ जाता है कि हाँ बस ये तो अब था ही, ये तो ऐसे होना ही था। सबा की माँ की कैरेक्टर जो अस्मा अब्बास बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं, वो एक बहुत ही वीक और एक हॉरिबल औरत है वो बेसिकली। You talking about our acting, look at this, हमारे सीनियर एक्टर्स कितने कमाल के हैं। कभी वो देखें कॉमेडी कर रहे होते, कभी ये कभी वो। देखें देखें, और वो कैसे वो दस्तक, अगर आपको याद हो उसमें अम्मा बनी थी, चुपके चुपके में अलग, रांझा रांझा कर दी में अलग। मतलब अस्मा बास के साथ मेरी एक पॉडकास्ट भी आने वाली है, इतनी मजे की वो खातून है, हम्म, इतनी वो फनी खातून है, और वो जब ऐसा रोल करती है तो मैं हैरान हो जाती हूँ, ये कहाँ से निकाला आपने। तो तो मेरे कहने का मकसद है कि जो उसकी माँ है वो भी उनके हालात में एक बराबर की मुजरिम भी है, लेकिन कहीं कहीं आपको उस पर तरस भी आता है जब वो कहती है ना कि मेरे बेटे ने मुझे पलट के नहीं देखा मेरे। एंड यूर लाइक यार, मतलब कुछ बेटे तो होते हैं जो, चलो जो बिल्कुल ही आपके मम्मी मम्मी पापा के बॉय बन जाते हैं ना, तो वो तो चलो आपका कहते हो कि ठीक है हमने इसको स्पॉइल किया, तुम्हारी मेहनत वसूल हो गई। मगर मैं कहती हूँ ना कि ये जो माएँ होती हैं जो ये रिस्क लेती हैं कि नहीं 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 नहीं, हम अपने बेटे को राज दुलारा पप्पा का प्यारा बना के बनाएंगे, और फिर वो हमें जब ठुड कर आएगा तो फिर हमारा क्या होगा। वो माँ है जिसके साथ ये हुआ है। और मैं कहती हूँ कि अब मैं इसको, शुड आई फील बैड फॉर हर, सो दीज आर द क्वेश्चंस not दैट at मम्मा, all, ना not आई at शुडंट, all. आई नो। I have met, अच्छा, and this is why I appreciate once again Imran Nazir. आपको हम्म। एक और ऑस्कर जाता एक है और कि आस करूँ या I give you is because I know two or three women like this. या I hate, I'm full of anecdotes, I'm afraid. लेकिन I have noticed वो बचपन में इतना उनको confidence देती है, and those boys, they abandon their parents. या Literally, I know of three cases in which the men इतने लाड, इतने वो, and I talked to one woman and she was saying कि मैंने कहा वो तो आपको एक साल में एक बार मिलने आता है, तो you हम्म। still love him so much and you're so obsessed. She goes, नहीं, जब मैंने अल्लाह से मांगा तो मैंने कहा I will cherish him forever, नो मैटर right? व्हाट। And no matter what, तो वो जो मर्जी बदतमीजी और गलत काम करता है, दिस इज माँ, सो and don't सैड। tell me माँ का दिल, right? Because I just don't यकीन in these things क्योंकि किसी और का, because look at this woman Asma Abbas, हम्म right? वो बेसिकली बेटी को सारी उम्र महरूम रखा है, उसके लिए कोई तरस नहीं, कोई कुछ नहीं, कि बस हम्म शौहर को अच्छा रखना है उसको। चोरी माएँ क्यों नहीं फोन कर सकती? एंड देन यू हम्म। हैव द अदर मदर, कैन वी टॉक अबाउट द अदर मदर? वो द जो अनुषा, अनुषा की माँ है, अनुषा की अम्मी because एना she रिजवी। is the classic example of uh, I don't know, these kind of women, I see them, you see, and this is what good writing does. हम्म It फौरन ना आपको मिरर दिखा देती हैं, हम्म right? Here is the, and this is what's going on in Kafil as well. You see के मेरी बेटी को ये, and I'm going to manipulate everything, and basically वो अपनी बेटी का घर पर बात वो भी कर रही है, right? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं आएंगे उसके ऊपर, लेकिन मुअम्मा के अंदर या कोई भी अच्छा राइटर या कोई भी अच्छा प्रोडक्ट जब होता है ना, तो उसमें इंसान के तरह तरह के रंग होते हैं। Mm, हम ड्रामों के ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए, तो मैं चाहती हूँ कि जो लोग बैठ के ड्रामे क्रिटिक कर रहे हैं वो ज़रा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगे, जब एक राइटर होता है, जब वो कहानी लिख रहा होता है, तो वो कहानी एक कहानी नहीं लिख रहा होता, वो mm, इंसान की दास्तान सुना रहा होता है। जैसे आपके आसपास 100 लोग होते हैं ना, कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई थोड़ा ग्रे होता है, कोई थोड़ा डार्क ग्रे होता है, कोई थोड़ा लाइट ग्रे होता है। इस तरह कहानी के अंदर भी हर तरह के लोग होते हैं। आपको एक अनुषा अब्बासी का भी कैरेक्टर नजर आया, एक मर्द आपको जुनैद भी दिख रहा है, एक मर्द आपको शाहजहां भी दिख रहा है। और आप जो कहानी से अखज़ करते हैं ना, वो आपकी अपनी बायसेस पे बेस्ड होता है, या आपकी अपनी जिंदगी के oh, very. तजुर्बात पे बेस्ड होता है ना। No, हम people immediately latch on to the characters that they दैट see दे with their रिलेट टू, life. दैट दे फील ड्रॉन टू। तो अच्छा,
हम ये इसीलिए कहते हैं, इसी वजह से कहते हैं बेटा हर कोई रिव्यूअर नहीं हो सकता, और रिव्यू करना इतना आसान भी नहीं होता। मैं खुद भी जब कुछ लिख रही होती हूँ या मैं कोई रिव्यू बना रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ एक मिनट, ये मेरा बायस है कि मैं इस लड़की को विलन या विक्टिम बना रही हूँ, ये मेरा बायस है कि मैं इसको हीरो या प्रॉब्लमैटिक हीरो समझ रही हूँ, तो आई हैव टू कॉन्स्टेंटली चेक माई सेल्फ एंड देन आई कम टू अ कंक्लूजन। तो जब जो लोग रिव्यू कर रहे हैं प्लीज उनके लिए वगैरह। सदफ, इज देयर एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड अबाउट मुअम्मा? No, I'm fascinated by the because you see this. Okay, let me reframe that. Hang on a हम्म। minute. हम्म। Jahan, Ara, and Shah Jahan, हम्म। right? In any other drama, they would be this idyllic, काश कैसे हो जाता है, हम्म। right? हम्म। And then you see कि भाई वो उनके जिंदगियों में कोई ऐसे तूफान नहीं आया, and हम्म। yet Anusha and Junaid are हम्म। still unhappy. या। I'm kind of curious about that dynamic. What's going on there? And I realize this, and we'll come to Kafil as well. Okay, हम्म। all of these people, it's a big problem with our Rishta culture and how हम्म। huge problem with our Rishta culture and what we think of what marriage should be, what marriage is. I mean, by the way, Anusha's character is a big villain. She's not a good person, and आई neither is डोंट थिंक Junaid. They आई really deserve each other. I in swear. in Moamma, I've hardly find heroes. I Yeah. think that's what's so amazing about the story, and why I think more intelligent audiences and even I think general audiences are drawn to it. Mm. Because अगर आपको एक इतना outright clear hero दिखेगा तो वो मज़ा नहीं आएगा कहानी में, एक तो। और मुझे लगता है कि सिवाय शायद शाहजहां के मुझे और कोई भी हीरो दिख नहीं रहा है ड्रामे में। मुझे सब And ग्रे। शाहजहां का सिर्फ ये इसलिए हम कह रहे हो थोड़ा सा हेरोइक है, बिकॉज ही हैज लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक। वो माफी मांगने आ रहा है, ऑल्सो अभी राइट? उसका इतना पता भी नहीं है, अभी वो आगे क्या करेगा अभी तो मालूम भी नहीं है ना, अभी तो पता या चलेगा कि, तो हो सकता है वो भी ऐसे ही निकले कुछ। लेकिन कमिंग टू मोहम्मद, जस्ट रैपिंग अप ऑन मोहम्मद, के इट्स अ ब्रिलियंट शो बिकॉज ऑफ obviously the performances, all of the performances, and and because it stays true to what it's trying to show. I wish that Shakil Khan with the same grading, with the same set, वो जो एक सेट है ना जहाँ पे शाहजहां वो पुराना घर जाता है और वो पुरानी वो दरवाज़ा खोलता है, वहाँ पे कोई हॉरर शो भी शूट करें, क्योंकि उसकी एक बड़ी ही पुरानी हवेली फील है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई उनको हॉन्टेड मेंशन टाइप स्टोरी शूट करनी चाहिए कि एक रूह है जो वहाँ रहती है और एक फैमिली वहाँ के शिफ्ट हो गई है और फिर वो रूह अपनी कहानी सुनाती है। पता नहीं मुझे उसको देख के क्यों नीली ख्याल है। जिंदा है। नीली जिंदा, बट नीली जिंदा बहुत डार्क था। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा हैप्पी हैप्पी, जैसा फ्रेंडली गोस्ट, कैस्पर द फ्रेंडली गोस्ट टाइप का कुछ। अच्छा, हाँ, कोई ये फ्रेंडली गोस्ट टाइप का कुछ होना चाहिए, बट नॉट नॉट वेरी लाइट, बट समथिंग इन द मिडल। आई रियली होप दे मेक दैट। आई थिंक दैट हम टीवी आफ्टर जिनकी शादी उनकी शादी, दिस इज अ क्लियर 6 आउट ऑफ 6 वाली चीज है, 10 आउट ऑफ 10 वाली चीज है। so great that people are appreciating it. यस। I यस। was talking to people, and usually I was not expecting this show to be a hit. Honestly, you know what happens, right? This kind of theatrical, kind of nuanced, हाँ, इट कैन गो एनीवेयर। वाला show इट actually कैन गो। great. या। अब यूजुअली हमें पता चलता है, नहीं यार, नहीं मैं नहीं देख रही। एवरीबडी आई स्पीक टू इज वाचिंग इट, एंड फ्रॉम एवरी एज, एंड इट्स गेटिंग फैबुलस टीवी। ऑल्सो ऑल्सो आई वॉन्ट टू टेक क्रेडिट, मैंने किसी को रिकमेंड किया कि मुअम्मा देखें, तो पता नहीं उन्होंने क्या देखा, हमारी कोई रील देखी, कुछ देखा, कहते कि पहले नहीं हम देख रहे थे, जब हमने आपकी रील देखी तो हमने देखना शुरू किया, आई एम एडिक्टेड। मैंने कहा थैंक यू, थैंक यू। हमारे रील्स जो हैं, हमारी वीडियोस, दे गोइंग समवेयर। काम आ रहे हैं, कुछ हाँ, काम आ रहे काम आ रहे हैं। हैं। And my final word on this is this, कि I am so glad that we got a role like this, because unfortunately भोली लड़कियों के अलावा हमारी एक्ट्रेसों के पास चॉइस नहीं होता। यहाँ वो मोमिना इकबाल टाइप की दो किनारे वाली चालाक लड़की होती है, चलाको मासी। तो हाँ। या वो भोली जो सब सफर कर रही हैं। So this हम्म। is good. इट्स इधर, इट्स इधर भोली बानो और चलाको मासी, बिटवीन द टू। एनीवे, कमिंग टू, बिकॉज हमने इतनी बात कर ली, वैसे तो मेरा प्लान था मेरी जिंदगी तो पे बात करने का, बट वी टॉक अबाउट कफील बिकॉज देर सो मच टू टॉक अबाउट इन कफील। सो व्हाट वाज योर टेक? आई फाउंड
so many things I have to say about it. Tell me Um, first, right? okay. Because I have a lot to say as well. ओके सो दो ट्रैक्स चल रहे हैं हमारे पास मेजर। एक ट्रैक वो पड़ोसनों का ट्रैक है, पड़ोसी की फैमिली में क्यों है वो ट्रैक, कहाँ से आया Oh, ट्रैक। I can understand why it's हाँ वो आई अंडरस्टैंड कि वो कहीं लेके जा रहे हैं उसको, बट लेकिन थोड़ा शुरू में तो बताते, अचानक ही स्प्रिंग कर दिया उन्होंने वो ट्रैक। अच्छा एक तो वो चल रहा है, दूसरी तरफ मतलब भाई मेन कहानी तो no, no. जेबा और Umaira Ahmed is one of those people. She has to. Imran Nazir to morally ambivalent रखा है ना, but हाँ Umaira makes judgments. ब्लैक एंड वाइट, Yeah. ब्लैक एंड वाइट। दूसरी तरफ हमारे पास ऑब्वियसली जेबा और जामी की कहानी है। अब जेबा और जामी की कहानी में आई वांट टू से कि the daughter kind of blames the mother for the, you know, Mm. like rishta nahi hua and all of that, and I have absolutely once again no sympathy with Zeba. And I am glad that the story went here because I was very frustrated with it in the beginning. Now, those questions are still unanswered, but when we talk about how that girl, the way that she looks at her dad, the way that she looks at her mom, the way that she looks at that boy, I am so glad that they didn't show कि उसने घर आके अपनी नसें काटने का फैसला कर लिया कि अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं दुनिया से जाना चाहती। No, she's angry. She's angry at the circumstances. She's angry at what life has given her. Gave me a lot of Zindagi Gulzar Hai vibe, like that angst that I remember that you and I have often talked about. That Kashf ka angst jo hai, it makes her very unrelatable to you, but she is very relatable to me. Like watching her somehow connected with me. That girl, that young girl who's frustrated with her parents' choices. The the thing with what I loved about Jami's character is that he's still independent. और मर्द ऐसे ही होते हैं जो ये वाले होते हैं ना, प्लीज खुदा के वास्ते, मैं ये मेरे हाथ जुड़े में आखिरी एपिसोड में बेटा मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफ, ये नहीं होता। वो पता है क्यों वो लोग करते थे, राइट? इट वाज टू मेंटेन मॉरल्स एंड एथिक्स इन सोसाइटी। वो बड़ा फर्क पड़ा है उधर, लोगों ने कहाँ बदलना है भाई, ये लोग नहीं बदलते, ठीक है ना। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि वो अभी भी उसको बिल्कुल बेगैरत इंसान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है कि उसकी ओ बेटी, ही थिंक्स ही इज करेक्ट। ही वो थिंक्स इज तो करेक्ट। इतना इस टाइप के डिलूजनल डेलुलु, ना। डेलुलु इज और द एंड सेलुलु। बाय द वे, जैसे वो जो उसकी वो जो नेबर्स का ट्रैक है ना, अगर हम्म। आप पूछोगे ना उसके उस लड़की को बताएगी आपको कितने उसके साथ जुल्म और ज्यादतियां जुल्म की। अब हाँ वो मैं आ जो रही हूँ, मैं उस पर आ रही हूँ। या अनुशा बासी का कैरेक्टर, वो भी जुल्म और ज्यादती के शिकार है बेचारी। हाँ हाँ माय इनर आंटी कमिंग आउट। भाई मैं इनर आंटी की तो बात ही नहीं करी, मैं बिल्कुल एक साइकोलॉजिस्ट या इवन जजमेंट फ्री जोन से बात कर रही हूँ कि ये जो लोग होते हैं ये अपनी गलतियों का एहसास इनको नहीं होता, ये आखिरी वक्त तक वैसे ही रहते हैं, जामी जैसे लोग। और जेबा जैसे लोग, उनकी मिस्टेक ये होती है कि जामी जैसे लोगों के या तो जाल में फंसी रहती हैं या उन रिलेशनशिप्स में पड़ी रहती हैं। कोड डिपेंडेंस वो बन जाती है बिल्कुल को कोड। डिपेंडेंस है, देखिए एक वक्त जिंदगी का होता है जब आपको कोई फैसले लेने होते हैं, हम्म। अगर वो जिंदगी का वक्त गुजर जाता है ना तो फिर वो आप उस भंवर में फंसे रहते हैं। हम्म। एक बड़ा अच्छा डायलॉग था माय बेस्ट फ्रेंड्स वेडिंग में कि देयर आर हम्म। मोमेंट्स वेर यू से थिंग्स, इफ यू डोंट से इट एट दैट टाइम द मोमेंट जस्ट passes you by, so you'd spend your entire life trying to like get that moment back, that exact moment back where you can say it. I think life's certain choices are like that. जब उसके माँ बाप, एंड आई थिंक दैट इज वॉट उमेरा वॉज लीडिंग विद एंड दैट इज वॉट शी केम टू नाउ, कि जब आपके माँ बाप ने आपको कहा था, जब आपको सिचुएशंस में अलाउंस मिल रही थी कि यार छोड़ दो, सबको पता चल गया है तुम किस अजाब से गुजर रही हो, तो टेक अ स्टेप, स्टैंड अप, स्पीक फॉर योर सेल्फ, एंड शी डिडंट। व्हाट आर यू अब ट्राइंग टू से, व्हाट इज देयर। नहीं, आई एम गोना काउंटर इट, क्योंकि वो उस टाइम्स में आई वाज अराउंड, राइट? एंड आई विल से इज it is, even in those times it's very difficult for women to take those steps, and sometimes people just don't have the courage, इतनी हिम्मत नहीं होती, so what you do, it's much easier to play along, you know। वो ड्रामास, फिल्म्स, राइट, अब उन वक्तों की फिल्में ही देख लो, राइट? उसमें हमेशा बिगड़ा हुआ कोई आदमी होता था, एंड देन यू नो उसने अपने प्यार और श्रद्धा से उसे सीधा कर दिया, उसने अपने सब्र और तवज्जो से उसको सीधा कर दिया, राइट? there is so many stories, but let's be practical, those are one in a, not a million, a billion, okay? हम्म। one in a billion के किसी ने कोई प्यार हाँ कि किया कोई वो सीधा, सीधा, मगर मगर देखिए जो राइट? सीधा हुआ ना, जो सीधा हुआ उसमें कुछ सीधे होने के आसार पहले से होंगे। जो सीधा हुआ इवेंचुअली वो कहीं तो आधा।
वो तो फोर्टी मेरा फाइव वो 45 डिग्री पे था तो वो 0 डिग्री पे आया, अगर वो वो था ही 90 पे तो उसने 0 पे नहीं आना था। Umaira Ahmed, to her credit, has given you a guy that is 180 degrees. या Right? या वो उसमें सीधे होने के यस, इम्कान ही नहीं है, थैंक यू, right? So, थैंक यू। but it's easy to fool yourself because I think we underestimate जो हम लोग इस जमाने के हैं, because people have literally वो shame का जो element है ना, हम भूल गए हैं। हम्म वो बहुत होता था, पब्लिक हम्म शेमिंग, फैमिली शेमिंग, लोग क्या कहेंगे, जीने नहीं देते थे लोग उस वक्त में। नहीं And बिल्कुल। then there is one person that told me, मेरे जो फलां फलां अंकल थे दूर के, उन्होंने कहा ये बड़ा बोलती है, इसने कभी इसका घर नहीं बसना। He spent 15 to 20 years with some terrible man. और whenever I used to say, why don't you leave him? And she'd say, हाँ लोग कहते थे ना ये बड़ा बोलती है, right? He used to, I mean, like, I don't want to go through the abuse she went to, but सिर्फ वो एक पब्लिक शेम की वजह से, and that's a generational curse, बट सदफ, unfortunately. मैं तो आपसे ही बार बार बात कर रही हूँ, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि ऐसी कहानियां नहीं होती या ऐसा नहीं होना होता कि आपने बोला ही नहीं। मैं ये कहती हूँ कि जो लड़की नहीं, जैसे आपने एक पूरी एक मुझे रीजन दी है कि देखो उसको बोलते थे, तो उसके जहन में वो बात कहीं फंस गई कि उसने कहा देखो सब मुझे बोलेंगे कि ये तो बोलती है, इसका घर नहीं चलेगा। आप ये कहीं दिखाते ना जेबा के साथ, वो हर जगह हर सीन में नहीं, ये हाँ, this is missing, you're quite दिस इज right. मिसिंग, दैट्स माई प्रॉब्लम, दैट्स माई ओनली प्रॉब्लम। आई हैव, आप जो कहानियां सुना रही ना, यही कहानियां मैंने भी सुनी है, मैं ये नहीं कह रही। मैं ये कह रही हूँ कि जेबा के साथ इस कहानी में कंसिस्टेंट या इस कहानी में एक झोल है, वो इस बारे में बात हो रही है। और इसमें जो ये जो पड़ोसनों वाली पड़ोसी वाली कहानी है, बस मुझे उस पर बात करनी है थोड़ी सी, फिर आई टेक योर टेक ऑन दैट, कि जो ये पड़ोसी वाली कहानी है ना, वो लड़की इतनी कोई बदतमीज लड़की है, इतना मुझे गुस्सा आता है उस लड़की को देख के। Not, लेकिन she's a लेकिन हाँ हाँ, typical मैं उस आजकल पे की आ रही हूँ, दुल्हन है वो। मैं आ रही हूँ उस पे। अगर आप लॉजिक देखें तो वो कुछ गलत भी नहीं कहती। वो क्या कह रही है, मुझे अपने अम्मी अब्बू से मिलने जाना है, शी इज अटैच्ड टू हर पेरेंट्स, शी वांट्स टू सी हर पेरेंट्स मोर देन शी वांट्स टू सी द बॉयज फिर पेरेंट्स। शादी क्यों उसने की? शादी क्यों उसने की? देखें, मैं यही बात कह रही हूँ, देयर इज समथिंग इनहेरेंटली रॉन्ग विद हाउ आवर शादी के बाद वाला सिस्टम इज सेटअप। आई थिंक देर इज, बिकॉज होता क्या है कि हमारे यहाँ बेटियों, वो लड़की स्पॉइल्ड है, मैं ये कहती हूँ वो लड़की स्पॉइल्ड है, लेकिन 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 नहीं, मैं मुझे वो स्पॉइल्ड लड़की लगती है, वो बदतमीज सी है। लेकिन लेकिन वो लड़की फिर भी, उसको जिस माहौल में वो आई है उसमें एडजस्टिंग उसके लिए आसान नहीं है। तो वो एडजस्टमेंट उसके लिए उसकी सास बेचारी जो आसान बनाने की कोशिश कर रही है, वो उन सर्टन मिडिल उल्ट पड़ क्लास। रहा है ना? हाँ, वो उल्ट पड़ रहा है। वो वो उसे खाने के लिए पूछती है, वो कहती है इसको क्यों खाना दिया पहले। इसे आई सीन दीज थिंग्स प्ले आउट बिफोर माय आईज, सो हम्म, मेरी आंखों के सामने हुए हैं ये मेरे सीन। मेरी आंखों के ही सामने हुए हैं थिंग्स विच हैव गॉन completely haywire when the other person is just trying to be nice. But the thing is, what तो happens वो in, यो प्लेट वाला सीन तो मैंने देखा है कि मियाँ ने ना माँ को पहले पूछ लिया, तो वो मैंने तो खाना ही नहीं है, राइट? सो मैंने आई ये सीन चीज दैट देखी है, हैपन। मैंने ये चीज देखी है कि फैमिलीज जो हैं वो ट्राई कर रही हैं टू मेक इट वर्क विद दिस बहू रानी, एंड द बहू रानी के मिजाज ही नहीं मिलते, क्योंकि फैमिली पूरी हर तरीके से सपोर्टिव है, लेकिन बहू रानी को स्पेस जितनी भी चाहिए वो कम है उनके लिए। नहीं, और and this is my take on it, right? हम्म I want to thank Umaira Ahmed for this. I हम्म really do. I know हमें झोल लग रहा है. I think the reason Umaira Ahmed made Jami so obviously black and white villain, no हम्म gradient, because हम्म she wanted वो जो एक हाँ इतलाक वाला ऑडियंस है ना, वो समझे कि हाउ आई एग्री, stupid they are. I agree. हाँ I जमीन completely आसमान agree. Yeah, है, that's the right? brilliance of this Yeah, show. Yeah, that yeah. is, she wanted to send him a message, but why she did that is look at the other side of it. वो जो लड़का है जो आशिर वजाहत की जो वो जो टिकटॉकर लड़की है, Hmm. राइट? वो इतने अमीरों के घर से आई है, वो चाय Hmm. बना रही है, वो जूते भी आशिर वजाहत से कैरेक्टर से कर रही है। एंड Hmm. दिस इज समथिंग आई वांट टू टेल एनी मैन हु इज लिसनिंग, if a girl likes you, you can be a drug addict, you can be totally broke, right? And you can regularly shove her into the wall, and she will say he didn't mean it. He didn't mean Hmm. it. Maybe I deserved I it. see those Reddit columns in which my boyfriend was a drug addict for 20 years at Sal, and he had alcohol problems, and I stood by him, blah, blah, blah. Now I'm getting married, and this man says, move to my city, and I don't want to.
right? And then you realize this drug addict give you nothing but hell, लेकिन जो आदमी आपको इज्जत बख्श रहा है, he is controlling me, right? Because unfortunate, this is the modern dulhan. This is the modern हम्म women think this way. So you see the other girl, and I think Umaira Ahmed is absolutely brilliant for pointing this out. जो औरत जब and I think it's men as well, जब वो हम्म negotiate करना शुरू कर देते हैं ना, I'm not going to do this, I'm going to do that, जिन्होंने शादी रखनी होती है वो इतने negotiations नहीं करते उस। हम्म भाई ये यहाँ पे इस उस पूरे डायनामिक में ना मुझे कहीं कहीं, हालांकि आई नो दैट यू आर फोर्स्ड और यू आर काइंड ऑफ लाइक शोन टू, देखे ना वो लड़की अमीर भी दिखाई है, वो बना एक तो भाई थोड़ी एक्टिंग बेहतर कर लेते तो बहुत अच्छा हो जाता, हालांकि शी इज नॉट डूइंग She's बैड बट learning. I don't think it's bad. इट्स क्वाइट बैड एट सर्टन प्लेसेस। हाँ Okay. तो वो फिर मतलब वो मैं तो जाना था, मुझे तो लेके जाए, मैं तो जाना नहीं चाहती, I अच्छा वो think लड़का अच्छा है you बेचारा। notice she's keeping it at kind of very low level, but maybe उसको वो जाहिर है अनुशे बासी जितनी वो skilled नहीं है, so you know, हाँ वो but जरा, it हाँ light. ले तो मुझे अंदाजा हो रहा था, मैंने कहा अच्छा ये दिखाना चाह रहे हैं कि लड़की बदतमीज है और लड़का और लड़के की माँ कितना अच्छे हैं, कितने अच्छे I हैं। don't think she's बदतमीज। लेकिन हाँ वही ना, मैं उसी पे आ रही हूँ कि मुझे लगा, मैंने कहा कि यार को गलत तो नहीं कह रही, बात कोई इतनी गलत बात तो नहीं है कि वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती है, उसकी माँ बुला रही है ये जो एक्सपेक्टेशन है, फिर देन मेड मी थिंक, आई डोंट नो इफ शी, इफ मेरा इज टॉकिंग टू पीपल लाइक मी, बट इट मेड मी थिंक कि वेयर आर दीज एक्सपेक्टेशंस एंड ट्रेडिशंस एंड ऑल कमिंग फ्रॉम, this pressure that we put young men and women and families in, where is it coming from, and the expectations that women have from men in these situations, where are they coming from, कि एक लड़के ने मुझसे अगर पसंद की शादी की है तो वो क्या अपना पूरा खानदान छोड़ के बैठ जाए, वो मुझे जो मर्जी मैं करूं, मुझे मैं ना घर के जिम्मेदारी उठाऊं ना ये करूं, सो आई फील लाइक दैट इज अ प्ले ऑन एक्सपेक्टेशंस। आई ऑल्सो रियली वांट टू अप्रिशिएट उमेरा अहमद ऑन नॉट रियली, क्योंकि वो बहुत जल्दी उस टेरिटरी में चली जाती हैं, नॉट रियली अलाउइंग दैट बॉय, जो क्या सैफ आई थिंक नाम है उसका, जैद सैफ जो भी नाम है, वो इतनी जल्दी उन्होंने उसको विलेनाइज होने नहीं दिया, वरना वो हो सकता था बहुत आराम से, उसने बहुत प्यार से कहा कि नहीं आंटी मैं चाहता हूँ मेरे घर भी रहे, मरी से वो आते हैं, बड़े प्यार से वो बात बात करते रहते हैं, द बॉयज ऑल्सो प्लेइंग इट रियली नाइसली। So I feel like there is a lot of good things to take from Kafil now, which was very frustrating initially, but I really enjoy watching Kafil now. I also enjoy the dynamic between the बहन भाई। मुझे लगता है कि वो बहन भाइयों की जो सारी डायनामिक है, जो जेबा के जो बच्चों की जो डायनामिक है, इट शोज अ लॉट ऑफ healing between the boys and girls, and it's a sad reality कि जब पेरेंट्स इतने मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं तो चिल्ड्रन आर लेफ्ट टू हील देमसेल्व्स, एंड इवन दो दे सीम रिलेटिवली वेल एडजस्टेड, Do इतने you वेल think एडजस्टेड होते नहीं है बच्चे। she's answering the question, right? हम्म क्योंकि सेबा के जहन में है, and I understand why, हम्म right? कि जब मेरी बेटियों का रिश्ता होगा लोग कहेंगे बाप कोई नहीं है, सो हम्म लोग रिश्ता नहीं करेंगे। इस टाइप का बाप ना होने से ये बेहतर है बात मैंने पहले तो कही थी, याद है? बेवा है। ये मैंने कही थी। बेवा, इट्स बेटर टू मैरी, यू नो दैट शी हैड बीन अ बेवा या इस टाइप के बाप से होने या से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो आई थिंक दैट कफील इज मेकिंग अ लॉट ऑफ गुड पॉइंट्स राइट नाउ, तो अगर जिन्होंने गिव अप कर दिया है कफील पे वो दोबारा देख सकते Have हैं। you noticed these people don't talk to each other? ये क्या बातें करते रहते हैं जब रिश्ता करते हैं? मुझे एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं तो डायस्पोरा हूँ, टेरबल, हम्म राइट? हम लोग तो आपका घर चोरी करने आ रहे हैं पाकिस्तान, हाँ, राइट? हम लोग को न लेता है गो, राइट? एंड सब आई जायदाद वांट अपनी टू छोड़े, नो ये सदा जो, वहां पे जायदाद छोड़े, ये नीली कोठी लेने आए हैं आप। राइट, नीली हम्म कोठी चोरी करने में आ रही हूँ, हाँ लेकिन ये है कि आई वांट टू नो जो लोग अपनी तरफ से अरेंज्ड मैरिजेस में ये वेरी प्रेवलेंट है, राइट? हम्म बातें क्या करते हैं ये लोग? देखो ना, इस जेबा ने कई मिन्नतें जाके इस रिश्ते के लिए की हैं, वाई? हम्म इस हम्म लड़की में कौन सी खूबी थी? या क्योंकि इट डजंट लुक लाइक सैफ एंड दिस गर्ल न्यू ईच अदर बिफोर, ये टोटली हम्म अरेंज लग रहा है, हम्म right? So she's from such a wealthy family. What did she expect to come in Saif's house? उसने या क्या उम्मीद लगाई थी? या या ऑल्सो मुझे ये भी लगता है ना कि जैसे ये जो हमारे यहाँ इस तरह की कॉन्वर्जेशन एकदम अच्छा रिश्ता उनको पसंद है, जैसे रियलिस्टिक नहीं होता ये जो उन्होंने दिखाया है कि वो लड़की
वो लड़का जो इस लड़की के घर में आता है रिश्ता लेके और हम्म, कहता है कि तुम्हारे बाप की वजह से नहीं हुआ, ठीक है। अगर वो कहता कि यार तुम्हारी घर वार देख के ना वो इम्प्रेस नहीं हुए, मेरी फैमिली ने कहा कि हम्म, कैसे एडजस्ट करेगी, आई वुड हैव अंडरस्टूड दैट ऐसे घर के लड़के ऐसे घरों में रिश्ते लेके आते ही नहीं है अनलेस लड़के ने मनाया हुआ और फोर्स किया हुआ कि मैंने तो right. यही It करनी है। made no It sense. made no sense to me either. That made no sense. One thing which I liked was when she's talking to that boy. They're both drinking drinks, and he's like fiddling with her drink. What I really loved, and again, props to Misam Nakwi for this, that she gets up and walked off, and so Misam takes a shot, which is the untouched drink of that girl. Hmm. And I thought that that was such a lovely touch because that just allowed you to feel how empty Visualize and the broken. Yeah, the visualization of that brokenness in that relationship is very real. And I also love that Misam puts in that effort कि वो उस आपने अगर वो देखा ना वो शॉट देखा, that's a very Karachi shot कि वो, एंड आई एम श्योर इट्स अ वेरी पाकिस्तानी शॉट के वो उस गली में रोते हुए अकेले चलती हुई आ रही है, वरना हम इतनी सैनिटाइज्ड दिखाते हैं कि बस वो एक समंदर पे बैठी रो रही है, भाई वो अकेली लड़की है वहां से चल के आ रही है, वो गली से गली में ही रोती हुई आएगी, वो समंदर पे बैठ के थोड़ी एस्थेटिक शॉट में रो रही होगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि वो इन्होंने इतने रियल टच डाले, इट मेड द गर्ल रियल फॉर मी, इट मेड द हार्ट ब्रेक रियल फॉर मी। सो to me, but प्रॉप्स टू again, हिम। answer me this, right? ये सब लोग, इवन अनुष जैसे फैमिली में अगर रिश्ता होता है, फर्ज करो, हम्म हम्म राइट, एक हम्म दूसरे को सालों से लोग जानते हैं, हम्म। तो क्या खाला जान को पता नहीं था हाँ अनुषा बासुरा हाँ की हाँ, बहन यस, का थैंक नेचर? यू, थैंक यू। अच्छा, और ये वाले जो लड़के हो जब आप एटलीस्ट प्रैक्टिस तो यही है, मुझे नहीं पता, मैं भी बहुत अरसे से बाहर हूँ और आई डोंट नो, मैं इस चक्कर में पड़ी नहीं हूँ, लेकिन जब किसी के घर रिश्ता फाइनली आप लेके जाते हो, उससे पहले तो आप बहुत सारी मालूमात करके रखते हो, आप पहुंच के थोड़ी पता करते हो कि अब्बा जी क्या करते हैं। I've noticed also this is something in the diaspora in particular that happens a lot. हम्म And what people do is instead of actually thinking practically about कि ये इन लोगों से हमारी बन सकती है या नहीं, हम्म right? What they do is खासकर लड़के वाले in particular are stupid about this. हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। अच्छा, अब वो ना जो लोग हैं, बिकॉज यूजुअली लड़का कमाता है ज्यादा है, नॉट एनी मोर बट इट यूज। हम्म सो हम्म व्हाट हैपेंस इज दोज पीपल, क्योंकि उन्हें रिश्ता करना होता है, दे फीड बैक वट एवर, हाँ जी आपकी बड़ी इज्जत कर, क्यों नहीं रोटियां इसे बड़ी पकानी आती है, हाँ हम्म जी, वो तो कोने में बैठ के ना ऐसे वो ना चमकेगी ट्यूबलाइट की तरह, वो शी इज नॉट गोना चेंज योर हाउस, राइट? सो ये दीज इलॉजिकल प्रैक्टिकल इनप्रैक्टिकल, राइट, हम्म थिंग्स दैट पीपल थिंक के आप जाओगे और आप किसी की पर्सनैलिटी चेंज कर लोगे, आप हम्म डिक्टेट कर सकते हो कि लड़की ऐसी बन जाएगी। भाई आप पता करो वो पहले वो इंसान है कैसा, हम्म औरतों के बारे में भी एंड मर्दों के बारे में। बट दिस इज अ लॉट ऑफ द रीजन, डिड दे नॉट नो कि अनुषा अब्बासी का कैरेक्टर मायरा जो था, दैट्स द वे शी वाज कितने सालों हम्म से। और ये हम्म जो बच्ची है जो लेके आया सैफ इन कफील, हम्म वो भी उसने कभी पूछा पहले कि कैन यू कुक, यू नो, हम्म। बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग माई वाइफ टू कुक, या दिस इज राइट? द आई काइंड ऑफ कांट फैमिली, वर्क, दिस इज द मैं तो काइंड बाहर ऑफ, का खाना खाता नहीं हूँ इसलिए। हाँ मैं इस तरह की हाँ, फैमिली से आता हूँ। या मैं इसकी भी बात करें, जामी के घर में जब वो रिश्ता आगे रिजेक्ट करके चले जाते हैं वो बच्ची के लिए, जामी की देवा और जामी की बेटी के लिए, आपको पहले नहीं पता था आप कहाँ आ रहे हैं, आपने घर में घुसते ही नहीं अंदाजा लगाया कि बाप क्या करता होगा, और बार बार ये दिखाया कि कोई बहुत सिर्फ अमीर, हमको बेइज्जत करने आए थे, हाँ बेइज्जत करने बेसिकली। आए थे, और ऐसे कोई आता नहीं है बाय द वे, मतलब पसंद भी हो सारा कुछ हो कि मैं अपने माँ बाप तुम्हारे घर ले आऊंगा, तो माँ बाप भी क्या करते हैं, ठीक है बच्चों ने कह दिया ओके, भाई माँ बाप क्या कर रहे थे, पहले आप दो चार लोगों से पूछते रहो मोहल्ले में जान पहचान वाले में, फिर आप जाके फोन करके कहते हो कि जी हम आपके घर आना चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप रिश्ते के थ्रू भी जाते हो किसी के कह के तो भी आप दो चार लोगों से पता करते हो कि ये अब्बा के मैंने पता करवाया था, ये है, बहुत ही अजीब था वो रिश्ता सीक्वेंस। एडवाइस फॉर फ्री हम दे रहे हैं यहाँ पर। या बिल्कुल, किसी को ज्ञान समेटना है तो समेट ले। हाँ, जी, लेट्स कम टू आपका और मेरा फेवरेट सबसे टॉप। मैं क्या करूं इसका? मैं क्या करूं इसका, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू और एक्चुअली। दर्द है तू, तो ओ माय मैं उसका नाम है तेरा गॉड। सर दर्द है तू। अच्छा, ओ। मुझे सबसे पहले मैं फटने वाली हूँ, राइट? आई हैव बीन थ्रू वन ऑफ द मोस्ट ट्रॉमेटिक वीक्स ऑफ माय लाइफ, बट हम्म यू नो मेरी गलती, मुझे मुझे सब माफ कर दे, मेरी अपनी गलती है। वो हम्म इंस्टाग्राम में एक दो सीन्स आए तो आई हैड टू वॉच मेरी जिंदगी है तू, बिकॉज आई थॉट हैंग ऑन अ मिनट,
ये तो वही लड़की नहीं है वर्दा, जो एक्ट्रेस का नाम जी वर्दा जी, है। वरदा अजीज। हम्म। ये फारिया उसका नाम है फारिया ना। कैरेक्टर। हम्म। Arya stripped you naked, made a terrible video of you, got you high on drugs, ruined your life. तो तीसरी बार तुम उसके बाद ड्राइव पे तीसरी चले बार, और रेगुलर हैंग आउट कर रहे हैं भाई, बड़ी है गए। उसकी। नाराज तुम उससे नहीं हो, नाराज तुम अपनी बीवी से हो। तो दैट इज द, ये दैट लिटरली इज दिस जेंजी। दैट इज लाइक नंबर 78 on my list of things I'm ticked off at. Number one is, you are literally showing two terrible people in love, and this girl is manhandling the boy. The boy is manhandling the girl. वो इसलिए ना उसको मैन हैंडलिंग दिखाई है। वो मुझे राधेन शाह की साइकोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता, मैंने आई स्पेंट माय टाइम थिंकिंग व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन थिंक्स ऑफ दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये है ना हम सबको जवाब देने के लिए, अगर वो बुरा है तो ये भी तो बुरी है ना। तो उन्होंने लिख दिया बस। ये क्या बात है? ये नहीं क्या ना, वो बात है? इट्स आप इट्स इट्स टू आंसर अस बैक। आप हम लोग जो नाराज होते हैं ना इन हरकतों से, वो बुरा है तो वो भी बुरी है, बराबर के हैं अच्छा, दोनों। अच्छा, मुझे एक बात समझनी है कि क्या ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पे, जैसे मैंने आपको बहुत कुछ अर्से हम्म। पहले जब हम इसको रिव्यू कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि मैं ऑल गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। तो ऑल हम्म। गर्ल्स कॉलेज में ना कभी कोई छटी हुई लड़कियां होती थी, बदमाश लड़कियां होती थी, जिनको हम अपनी जबान में बड़ी बदमाश है, क्यों? हाँ। क्योंकि उसको कोई लड़का पिक करने, वरना हमारे सब बेचारी वैन से जाती थी अब शरीफ बेचारी डीएचए कॉलेज की, मैं डीएचए कॉलेज से पढ़ी हूँ। तो आर्म्ड फोर्सेस का कॉलेज था, और अल्लाह मियाँ के वो बिल्कुल दूर दराज जाके कहीं, बिल्कुल ही कहीं दूर था वो कॉलेज, फेज 8 में। अब तो वो बड़ा आबाद हो गया एरिया, वो बिल्कुल कहीं आइसोलेटेड कॉलेज था वो। वहां तक वो लड़के बुला लेते थे और मुझे लगता था, मैं कहा यार ये बड़ी तेज चीज है। खैर एनीवे, तो वो जो लड़कियां होती थी, उन लड़कियों के पीछे फड्डे होते थे, लड़के लड़ते थे, गार्डों से लड़ाइयाँ होती थी, तो इस तरह के हम्म। किस्से कभी हमें सुनने को मिलते, तो हम कहते थे कि और ये लड़कियां कौन है? कौन है ये लड़कियां? वो लड़कियां वो होती थी जो क्लास में 0 नंबर लाती थी, बड़ी तेज होती थी, बट क्लास में उनके ना दिल में पढ़ाई में दिल लगता था, ना वो टाइम से कॉलेज आती थी, उनके घर में प्रॉब्लम्स होती थी। ये वेल एडजस्टेड लड़कियां ये कभी नहीं करती थी, सही है? तो आयरा को पहले उन्होंने दिखाया वेल एडजस्टेड, बहुत अच्छी लड़की है, और बहुत अच्छी अच्छे बच्ची है, खानदान के एथिक्स वाला अच्छे खानदान। खानदान की, अच्छे माँ बाप की, बाप अच्छा, मियाँ बीवी अच्छी, जो मतलब माँ बाप अच्छे, और बहन बहन भी अच्छी, भाई भी अच्छा, सब अच्छे, खुद अचीवर, ओवर अचीवर, डॉक्टर, और वो ये कर रही है कि ना सिर्फ वो एक छठे हुए बदमाश से उसको मोहब्बत हो गई है, उसको, उसके लिए वो लड़ाई कर रही है। दैट इंटायर डायलॉग मेड मी वांट टू बैंग माई हेड अगेंस्ट द वॉल, कि मैं जहन्नुम बनाना चाहती हूँ अपनी ज़िंदगी, मेरी वजह से ज़िंदगी बर्बाद हुई है, मैं, तुम मुझे डराओगे? बेसिकली जेबा जेबा का जो जैसे जेबा के साथ हुआ, स्पेक्टेकुलरली बैड एडवाइस फ्रॉम ग्रैंड मदर 40 years बैक, एंड द सेम ग्रैंड मदर इज हाँ, द डिफरेंस पीपल्स लाइफ इज, नाउ। द डिफरेंस इज इन कफील यू एक्चुअली सी कॉन्सिक्वेंसेस, बट इन मेरी जिंदगी है तू, यू डोंट सी कॉन्सिक्वेंसेस, यू सी ग्लोरिफिकेशन, दैट इज द डिफरेंस। एंड आई एम सो डिसअपॉइंटेड इन राधा एंड शाह, आई एम सो इनक्रेडिबली डिसअपॉइंटेड। आपको उम्मीदें थी हृदय शाह से? यार इतना यार हॉरिबल! ये क्या, ये कैसा माजरा है? ये क्या माजरा हुआ? यार इतना कोई, मतलब जब उसने उसके ऊपर लिटरली हाथ उठाया, और मैं, इतना मुझे तकलीफ हो रही थी, मेरा दिल में आ रहा था मैं बोलूं भाईजान, ये जो तुम खड़े होके बदमाशी कर रही हो ना, गुंडी बनी हुई है उसके सामने, ये तुम गुंडे के सामने बन रही हो, कोई नॉर्मल। आपको वो चुभ रहा था, मुझे चुभ रहा है जो, चलो वो तो फिर भी कोई मामूली बात है, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील। वो उसने ऐड किया। मुझे आप बताएं, समवन हैज लिटरली रुइंड योर लाइफ, वो बार बार उसके पास जाता है और गप्पे लगा रहा होता है अच्छा, और वो ताकि सीन के क्या है, वो साथ। जो छत पे टेरेस पे खड़े हुए सीन है कि चलो ना हमारे साथ, चलो ना, एंड मैं आयरा की, अच्छा मैं आयरा ऐसे तो बड़ी गुंडी बनी रहती है, ये तुमने कैसे टॉलरेट कर लिया? Why are you tolerating this? And you're just standing और there and you're उसने like उसको smiling. नाराज वो, एंड ओके, यू नो व्हाट, आई वाज वाचिंग दिस एंड माय हस्बैंड वाज वाचिंग दिस सीन, it was and he said to me, okay, quote unquote, he Hmm. goes, this is a very dangerous, according to him, dangerous attempt at shifting the Overton window on what a hero is in our culture. जी, थैंक पाकिस्तान यू। में इस टाइप के एथिक्स के लड़का जो है ना,
drinking alcohol. He is, I'm not saying there is not, that doesn't happen. I'm sure there's plenty who are drinking, smoking, weed, doing all this kind of thing, but अच्छा नहीं उन्हें समझा जाता, हम्म राइट? एंड उसको हीरो बनाया, और उसकी कोई चीज वो माइंड ही नहीं कर रही हीरोइन, इतने हम्म अच्छे बैकग्राउंड की खानदानी और डॉक्टर, हम्म राइट? और वो कह हम्म रही है कोई बात नहीं, यू गो एंड गेट ड्रंक ऑन अ रेगुलर बेसिस, तुम औरतों के साथ घूम फिर रहे हो, इट्स ओके, कम एंड गिव मी एन एसटीडी, राइट? सो यू नो, शी jumped into that bed. या I mean, this is a very, I'm sorry to say this because people in our comments are going to be angry, but that's how an Indian hero is. ये हमारा कल्चर नहीं है। और एक और चीज भी किसी ने बड़ी अच्छी इंस्टाग्राम पे पॉइंट आउट की है कि there was some creator who had put a scene of Ira in that red dress and she's in the kitchen मैं आपके लिए चाय बनाऊंगी and this and that and he's like it was a guy or a girl I don't remember who it was and they were like wait a minute isn't she a doctor doesn't she have work the guy clearly isn't interested in her the family is so dysfunctional भाई तू काम करने जा Why does she want to be Zeba? Why does she want to be Zeba? जेबा भी बहुत Yeah, अच्छी चीज है मैं तो कहती हूँ दुर्रे yeah, शवार बनना चाह रही हो तो दुर्रे शवार एक्चुअली दुर्रे शवार में ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट थी कंपेयर टू जेबा yeah. आई वुड फील आई थिंक या रिवर्स इज ट्रू सो इन मेरी जिंदगी है तू आई जस्ट वांटेड टू टेल एवरीवन हु इज वाचिंग बॉस दिस इज नॉट रियल अच्छा आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइन who also like me goes through trauma every day autistic children and Oh. neurodivergence and she was telling me why she liked Danish Taimur's shows. Mm. So she obviously she's a much older person and she's not a Gen Z kid at all. And she said that certain things she watches with Danish Taimur where he's like this angry man and he's just and then you're angry at the girl. इतना अच्छा है इतने पैसे हैं इसके पास तुम्हें क्यों नहीं अच्छा लग रहा है Yeah. तो you're like she's like I वो watch जैसे मुकद्दर में हुआ था ना, मुकद्दर में हुआ था स्ट्राइक किया फ्यू टाइम ना, या इतनी बर्दाश्त बिग होने डील की क्या सो जरूरत है? व्हाट हो जाता है ये अच्छी तो आदमी है, समटाइम्स फैसल कुरैशी इतना गुड लुकिंग है, गुड और लुकिंग क्या है चाहिए, पैसों की राइट? गड्डियां तुम्हारे सामने रखा हुआ है तो चिल ना ब्रो so they have like shows like that which she says she watches for escapism and then she says that certain shows she likes like Ek Aur Pakiza she likes them for the brutal truths that life offers so I thought about it for a minute and I said, she has a fair point that certain shows, if they are taken on face value, and she said that when I watch those shows, I know they are not reality. Now, she's a much older person. And I'm glad that she's getting something that allows her to escape the harsh realities of life. But मेरा बनाने वालों से ये point है कि कभी कभी जब आप harsh realities से escapism के लिए भी कुछ चीज़ बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं moral landscape तो stable रहना चाहिए ना ये तो नहीं होना चाहिए कि वहां पे आप दिखा दो कि जी जो विलन है वो हीरो है और विलन है और आप इसे दानिश एस्केपिज्म कहो दानिश तैमूर के ड्रामास में, I have never seen a hero that drinks. I don't think his characters drink and party with girls and treat them. व्हाट वाज ही डिडंट डू दैट इन कैसी तेरी खुदगर्जी कैसी तेरी, आई डोंट रिमेम्बर, मैं हम्म क्योंकि दैट वाज सच अ बैडली मेड शो। यू रिप्रेस्ड इट मुझे ऐसे लगता है जैसे कार्टून है कोई, तो हम्म इट वाज हार्ड टू वॉच, पेनफुल, राइट? हम्म So I'm not sure, I don't think so, but for me this drama is made for the Indian gaze, क्योंकि वहाँ हम्म more secular, they have different values, so हम्म it's made for the Indian gaze, whereas a Pakistani drama that I हम्म would classify Kafil and मुअम्मा Muammar, हम्म Muammar, हम्म क्योंकि वो जो एक slow analysis of feelings, of cultural norms, showing us the mirror, then showing the opposite side, वो हमारे writers जो है ना, आई इवन थिंक लाइक वो शरपसंद इतना बड़ा नहीं गया ड्रामा लेकिन शरपसंद भी एक ऐसा ही ड्रामा है हम्म, जिसमें मोरालिटी का डिफिनेशंस बड़े स्ट्रांग हैं बहुत अच्छे अच्छी और सही डायरेक्शन में है उसकी मॉरलिटी वो जैसा भी ड्रामा है कहीं क्रिंज हो जाता है कहीं स्लो हो जाता है कहीं फास्ट हो जाता है मगर उसका मॉरल कंपस कहीं इधर से बल्कि उसका मॉरल कंपस एक्चुअली बाकी बहुत सारे ड्रामों से बेहतर है जहाँ पे लड़की को विलनाइज नहीं किया जहाँ मॉडर्न या एक इंडिपेंडेंट लड़की को बल्कि इनफैक्ट दिखाया जाता है कि जब एक लड़की मॉडर्न या इंडिपेंडेंट हो जाती है तो उसको कैसे दुनिया गलत नज़रों से देखती है हमेशा गलत अजम्पशन उसके बारे में बनाती है जबकि वो गलत नहीं होती आप जिन लोगों को अच्छा समझते हैं वो जो
जो खान, वो जो फरासत जी जो हैं, नौमान इजाज जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एक कितना उन्होंने जान के ऐसा कैरेक्टर बनाया है। जो मोहल्ले में एक अंकल होते हैं जो सबको बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन Yeah, वो a lot of अंकल वो people कितना are फसाद फैला रहे recognizing. होते हैं। I've noticed a lot of people watching Sharpasan हम्म। because they recognize the They character. recognize that. So honestly, props to सारा सादैन शाह कि उन्होंने अपनी morality पे कहीं, and I've heard that she's his sister. She's Radhan's sister. So I mean, मुझे बहुत interesting लगी ये चीज़ कि अपार्ट फ्रॉम मेरी जिंदगी है तू, जितने भी मैं ड्रामे देख रही हूँ जो भी हैं, इवन द सिली सोप समटाइम्स हैव अ बेटर मॉरल कंपस देन दिस ड्रामा। मतलब दिस ड्रामा हैज लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ मोरालिटी। कोई सेंस नहीं है इस ड्रामे में कि सही क्या है, गलत क्या है, But हीरो क्या है, हीरोइन क्या oh, है। and I hate to say it, but it is very entertaining. वो ऐसे वो ना वो हंसते हंसते आप जहर पी जाओ. That's what it हाँ। is basically. But look, हम लोग as drama critics, we take shifts and in perspective, right? And trends in dramas very seriously. The average watcher will watch it and say, okay, ठीक है, right? And they don't take it seriously. But what worries me is a lot of the stuff that we see on screens, right? We tend to, it doesn't take one drama, but it takes several, maybe in films and books, whatever, just as they shape our expectations of life, romantic expectations in particular, right? ऑल्सो इफ अ ड्रामा इज दिस बिग, 20 million व्यूज, 40 million व्यूज, 100 million, जैसे हमें तेरे बिन से इशू था, Mm. what it does is it inspires a lot of other channels कि यार ये बना दो, वो तेरे Yeah. बिन बना दो जरा, यार वो मेरी जिंदगी है तो बना दो। और मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि बहुत सारे शोज जो सीन्स मैंने जो मेरी जिंदगी है तो के देखे, जो वो शादी के बाद वाले सीन्स, कमरे में वो आ रहा है, वो उधर लेटी है, वो उधर लेटा है, तुम इधर सोगे मैं इधर नहीं सोऊंगी, वो वेरी रेमिनिसेंट ऑफ कभी मैं कभी तुम। बट व्हाट अ ब्यूटी वाज कभी मैं कभी तुम। व्हाट अ वंडरफुल शो। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट बड़ी बात होती है ना. ट्रीटमेंट एंड मैसेजिंग, सदा मैसेजिंग, उसकी मैसेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसकी मैसेजिंग में हम ढूंढ के निकाल लें तो कोई प्रॉब्लम्स निकल आए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो एक बिल्कुल सॉलिड बात कर रही थी। फरहत इश्तियाक की कहानी, या मुस्तफ़ा के कैरेक्टर की कहानी, या शर्जीना के कैरेक्टर की कहानी बड़ी सॉलिड कहानी थी कि मटीरियलिज्म से खुशी नहीं खरीदी जा सकती। और यहाँ पे आप कह रहे हो कि जी इस लड़के की मुझे तो अभी तक कामयार की समझ में नहीं आती। मैं, आई एज अ साइकोलॉजिस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड हु वो हैज मैं रिटन दिस मुझे पता है कैरेक्टर। कामयार को रेटिंग्स चाहिए, सो जरा सा डब्बा खींचने के लिए ना कामयार ने कहा है खत्म हो कि रहा है मैं वैसे, भूखा रहूंगा. दो राइट. तीन एपिसोड्स बाद खत्म हो रहा है, दैट्स व्हाट बट आई अपेरेंटली आई ही आई सेड। बिलीव ये जो रूठे सैया जो है ना, या रूसी रन, विच इज रूसी। व्हाट आई रियली वांट टू से. आई मीन रूसी रन इज तो रूसी ये बिकॉज थोड़ा सा स्ट्रेच की है, बट नॉट टू मच. राइट. हाय बस हमारी जान छोड़ दो और प्लीज ऐसे ड्रामे ना बनाओ, हम तो यही कह सकते हैं अगर वो कोई तो सुन रहा है बनेंगे. तो। हाँ, आप गलतफहमी है आपको, वो तो आप तो खूब बनेंगे. आप तो खूब बनेंगे। बट दे वोंट बी एज गुड एज दिस वन. देखो ना, अगर आप इतना जज्बाती हो गई मैं, मेरा माइक ही गिर गया, उठा के पटक करके गिर गया। किसकी? मेरी जिंदगी तो, के फैंस की बद्दुआ लग गई मेरे माइक को। हमारा ये भी कसूर है. हाँ ये भी कामयार तुम्हारा ही कसूर है, तुम्हारे फैन पड़ गए मेरे पीछे, उनकी No, no, बदुआएं right, लगी correct. हैं। ओ But माय गॉड। look, people are right. Sometimes I believe the actors also bear some responsibility, but ऑफ कोर्स दे डू। it's very tempting when something is going to be this much of a blockbuster hit, and you have to understand that the audience is to blame as well. They love it. आई नो। Love it. आई नो। शुक्र करो उसने. I read somewhere कि लोग कह रहे थे शुक्र करो उसने अगवा नहीं किया आयरा को. And I said, well, why not? कर अपनी लेता, क्या फर्क पड़ता? क्या फर्क पड़ता? इतना है क्यूट है तो बिलाल अब्बास, हम माफ कर बस. देते। हम माफ कर देते, वो भी कर लेता, आयरा। आयरा अगवा भी हो जाती, लोग माफ कर लेते। अब क्यों? एस्थेटिक्स हैं तो फिर क्या है, एस्थेटिक स्लैश मॉरल टेस्ट। um हाय हाय, बस माफ कर दे हमें And we get that lovely middle class judgment as well. मुझे ना, हम तो रोज सारी सुबह उठ के काम पे जाते हैं. आयरा की फैमिली, बाजी इनकी फैमिली का कुछ पता नहीं है, किसी टाइम पे खाना होता है, किसी टाइम पे वो. तो and I'm looking at that's the least of your problems, आयरा. तुम इतनी जजमेंट जो पास कर रही हो. सही बात है यार, गर्ल यू गॉट बिगर 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 फिश टू फ्राई। हाँ Judging your अच्छा। in-laws, right? अच्छा एंड ऑल्सो आई कैन नॉट, लाइक फॉर द लाइफ ऑफ मी फैथम, लाइक आयरा कोई गरीब घर से नहीं आई।
नहीं, ठीक है, अच्छी भली अच्छी भली गलती कर दी नौकरों है। वाले। ये घर मैं चाय बनाऊंगी, हम्म। इन घरों में नहीं, कोई चाय नहीं बनाता भाई, नौकर बनाते हैं चाय, नौकर बनाते नहीं, हैं but चाय। I think it's they're trying to show her empowerment. ना मैं just this is my reading. They are trying to show कि हाँ उसने कर ली शादी, लेकिन कोई उसे दबा नहीं सकता, वो दबंग हीरोइन है और वहां जाके भी empowered है। सो मैं सदर चाय दबा के बनाऊंगी चुप इज, करो, फिर हाँ क्या मैं हुआ चाय अगर उसने बनाऊंगी इज कर एम्पावरमेंट। yeah, ओके। yeah, because it's like she's not overawed. Do you remember Elizabeth Bennet goes to कौन सा वो Rosings Park? So हम्म। she's not overawed by the वो डार्सी की, ना डार्सी की wealth से, ना डार्सी की खाला या whatever her name is, हम्म। lady whatever her name is. हाँ। She's not overawed. She हम्म। sees those fantastic Every time I side. talk to you, I end up watching Pride and Prejudice again. Oh my God. And I'm listening to Harry Potter's Audible full cast audio edition. So Matthew McFadden is Voldemort. And I'm like, no, you're Darcy, bro. Every time I hear him, I'm like, okay, I get it. You're a great actor, but you're Darcy. What are you doing? Why are you sounding like Voldemort? Why are you creeping me out? Anyway, I want to now come to speaking of fairy tales, coming to Neeli Koti. Sadaf, your take. I haven't been able to watch that much. I've had Hmm. a kind of traumatic week, so Yeah. Oh. but it's kind of fun. आप बताएं कैसी रही? ओ या आई फॉरगॉट यू हैवंट सीन इट, आई लव्ड नीली कोठी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये वाला भी एपिसोड बहुत अच्छा है, पिछले दो एपिसोड भी बहुत अच्छे थे। आई थिंक इट्स अ ग्रेट, इनफैक्ट आई थिंक यू मे वांट टू टेक आउट सम टाइम एंड वॉच टू डी स्ट्रेस, Mm. because it's such a मतलब सुकून on your nerves. Anjum Shahzad has like really kept it. The colors are not an assault, and I love that he plays with costumes. Like all the other people will be wearing these kind of colors जो मैंने पहने हुए हैं ना, बड़े सिंगल टोन कलर, और Mm. सिर्फ अनमोल बलोच के कपड़े थोड़े से डिफरेंट होंगे या उसके कपड़ों में कोई फूल मुझे पत्ते लगे हों। सीना सईद के बड़े अच्छे बड़े कैसे अच्छे, मतलब हाँ, सबके वार्डरोब्स तो बहुत अच्छे उसकी हैं। वार्डरोब मुझे बड़ी मजे की लगती है। अच्छा, एंड आई एम गोइंग टू लैंड ऑन रेडिट अगेन व्हेन आई एम गोइंग टू प्रेज तलहा चौर। एक तो पता नहीं रेडिट वाली बेचारी बच्चियां जो हैं वो बड़ी बर्गर बच्ची हैं, उनको तलहा चौर नहीं अच्छा लगता। I have a feeling that that it may not be actual people, ना? पॉसिबल पॉसिबल। Agenda driven somewhere. एजेंडा, हाँ, पीआर टीम्स नहीं, एंड ऑल हम ऑफ भी दैट। कह सकते हैं जेंडर ड्रिवन पीआर, पैसे की गोली नहीं आज पहुंची। हाँ हम भी कह हाँ, सकते हैं, हम भी रेडिट को कहेंगे। भी पहुंची होगी, रेडिट को भी पहुंची होगी अकॉर्डिंग तो। टू ट्विटर एंड वेरियस अदर प्लेसेस ना, मुझे पैसों की बोरियां आती हैं। अच्छा, आपको वैसे बुरी आती हैं? ओ, ओके। और आज नहीं पहुंची और कल पहुंची थी एंड ऑल दिस। अच्छा अच्छा, तो वो दैट डिसाइड्स योर ओपिनियन। या ऑफ कोर्स, राइट। इफ इट ओनली वर दैट सिंपल। तो हम उनके बारे में भी कह सकते हैं, आज पैसे की बोरी नहीं मिली, आज 20 रुपए। हाँ, तो वहां रेडिट को कोई जो एंटी तलाचाऊर पार्टी है वो पहुंचा रही है पैसे की पूरी, तो वहां तो ऐसा पिटाई होती है मेरी और आपके ओपिनियंस की, कभी कभी अग्री अच्छा भी जी। करते, ओ हो। तो यौन फेस्ट कितने फारे गए लोग बहुत ना। बेचारे, मतलब मेरी ट्वीट्स पे बैठे होते हैं और वो हर वक्त देख रहे होते हैं, और फिर उनको, मुझे बड़ा अफसोस होता है उन बेचारों पे, तो हर थोड़े दिनों बाद किसी इन्फ्लुएंसर पर टी मांग रहे होते, एनी टी ऑन दिस, एनी टी ऑन। मैं कहा यार बड़ी मारे को, वैसे and मुझे पता भी नहीं है कौन है बच्चियां ये। मुझे मजा आता है कि लोगों को गलतफहमी है कि जस्ट बिकॉज रेडिट के ऊपर है, इट्स द It's ट्रूथ, true. Oh my, एंड नो Reddit. इन्फ्लुएंसर कुड पॉसिबली Reddit बिकॉज is the रेडिट। worst place to verify your claims, bro. Um, अच्छा, तो anyway, coming back to Neeli Koti, I found it really nice. Mainly because I think कि the acting is really well done by Talha. उसके एक सीन है जिसमें वो उसको गुस्से में वो खड़ा हुआ है और गुस्से में उसके ऊपर कैमरा स्लो पैन इन करता है, वो बहुत अच्छा लग रहा है उसके अंदर तला। लव अनमोल बलोच इन दिस, बट तलहा इज टेकिंग द केक। बहुत ही रिडिकुलस चीजें हो रही हैं कि वो कहती बस तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, वो कहती ओके, हॉस्पिटल में अचानक से आ जाती, कहती बेटे से शादी कर लो, कहती ओके, तुम मुझे ये माफ कोई कर दो। ना किताब है, इट्स लाइक वन ऑफ द स्टोरी बुक्स स्टोरी एंड बुक्स। अच्छा, दिस इज व्हाट आई मीन, लाइक जैसे रिलैक्सिंग एंटरटेनमेंट नहीं होती, एंड हाँ। यू देयर इज नो नथिंग अनएथिकल, नथिंग, नो। यू नो, हाँ। एंड येट इट प्रेजेंट्स पीपल हु हैव हाँ, पर्सनालिटी। अच्छा मुझे बताएं, वो जो खालू है उसको उन्होंने वापस बुला लिया कि नहीं, नहीं? वो कहीं गायब हुए हुए, ना साहिबा नजर आ रही है ना खालू अच्छा। नजर आ रहे हैं, भी कहानी दूसरी ट्रैक पे चली गई है। जो बिस्मा थी जिससे जैद की शादी अच्छा। होनी थी वो भाग गई है, और अब अब जैद और ये जारा, सारा कौन है जो हमारी हाँ हीरोइन हाँ, है, उससे सारा शादी, सारा। जारा से शादी होने वाली है। और वो अब अगले एपिसोड के प्रोमो में शायद हम देखेंगे कि वो निकाह होने वाला है। ओ भाई बहुत मजे का, आई डोंट एवर वांट इट आई टू लव एंड। आई थिंक दिस शुड बी वन ऑफ दोज ड्रामा जो 100 एपिसोड होने चाहिए, जिसके ना इट। मैं देखती रहूं हर हफ्ते, मेरे पास एक कंफर्ट चीज हो टू रिलाई ऑन, इट्स अ सॉफ्ट पिलो।
एंड आई जस्ट वांट टू रेस्ट ऑन दैट पिलो एंड गो टू स्लीप एंड जस्ट वॉच इट एंड अगेन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मजे के सिर्फ साथ। सिर्फ इसलिए क्योंकि सी व्हेन आई से एस्केपिज्म दिस इज व्हाट आई मीन बाय एस्केपिज्म, Hmm. आई वांट For दिस me, एज, this is हाँ escape. दिस इज एस्केपिज्म। And there's plenty of nuance there. That, हाँ, people make mistakes. It's not that, but ethically it's sound. no, also it's intelligent, Sadaf, in so many Hmm. places. It's dumb in Hmm. many places, but it's intelligent. Like the character, when she gives some kind of reasoning, तो वो कुछ उसकी semblance of logic होती है, तो वो अच्छा ड्रामा उन्होंने उस तरह बनाया है। एक और पाकीज़ा है, मैंने नहीं देखा है तो मैं उस पर We'll, कमेंट नहीं we'll, करूंगी। we'll do something on that या individual. विल डू इट ऑन अ सेपरेट सेशन, हम कुछ अलग से एक सेशन रख लेंगे। आग लगे बस्ती में का ट्रेलर आया है तो वो मैंने देखा है। इट इज़ वेरी रेमिनिसेंट ऑफ नबील कुरैशी। अच्छा। नबील कुरैशी के एडी रह चुके हैं बिलाल आतिफ खान जो डायरेक्टर हैं, और अम, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी फिल्मों में अच्छी चीज़ ये थी कि नदीम बेग का एक अपना लैंग्वेज थी, एक अपना विजन था। नबील का अपना था। इसके अलावा जो हमारे और डायरेक्टर्स हैं, वजाहत रऊफ़ हैं, महरीन जब्बार हैं, और भी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, इन सब के अपने अपने कुछ लेंसेज हैं जिसके थ्रू ये दुनिया देखते हैं, कहानी सुनाते हैं। बिलाल आतिफ खान की इस कहानी में और नबील कुरैशी के स्टोरी टेलिंग में कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा मुझे। सो देयर इज़ नथिंग एक्साइटिंग अबाउट इट एक्सेप्ट दैट आई एम अ बिट वरिड के the lens and the framing is the same as नबील कुरैशी। Is it going to be as solid as, क्योंकि नबील कुरैशी की फिल्मों की सेकंड हाफ हमेशा वॉबल करती है, हमेशा वॉबल करती है। तो अच्छा। नबील की फिल्मों में, लेकिन लेकिन शुरू की फिल्म, शुरू का कोई 1.5 घंटा, डेढ़, बहुत अच्छा होता है, बहुत रिवेटिंग होता है। तो क्या वो उनको सरपास करेंगे, या वो उनके वाले मिस्टेक्स को अब रिपीट करेंगे, या वो कुछ नया लेकर आएंगे? सो दैट इज व्हाट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट। You know what? I think Pakistanis do not know how to make trailers and teasers. Indians do, We don't right? know how to make films either. अब Yeah. ट्रेलर टीजर पे don't stop. Uh, We don't know how to make what can films. I say? Quite right. We बट don't know how to make कुछ films. अच्छी भी बन जाती हैं जैसे मौला जट है अब। एंड व्हाट आई विल से इज आई वॉच्ड कायदे आजम जिंदाबाद एंड ऑल दीज मूवीज। आई फहाद मुस्तफा की मूवीज मैंने देखती हूँ। आई डू एंजॉय देम। I have to say, he Hmm. knows how to make, well, he is always part of an entertainer. So Hmm. कुछ उन्होंने सोचा होगा। And then of course, My Love Myra is in there, and I am going to Watch definitely it for her. I can't help it. I'm a fan, right? Hmm. I never denied it. So Hmm. let's see. I mean, obviously, I can critique as well. I'm not that blind, but Hmm. I think that we don't know how to make teasers and trailers, and aksar wo na kind of they put us off. I've noticed with every teaser trailer, I'm like, no, I don't want to watch this. Whereas when Hmm. I see an Indian teaser trailer, no matter South Indian movie or North Indian Hindi cinema wali, so I want to watch that movie. Hmm. हमें वो आर्ट ही नहीं आती बट आई सस्पेक्ट एंड दिस इज हैपन टू मी एवरी टाइम कि इट्स गोना बी एंटरटेनिंग it's going to be Hmm. fun. Let's see if they can maintain that kind of hit line that Fahad Mustafa has been making so far. I mean, there's quite a bit of competition. मुझे लगता है तीन चार और भी है। एक वो क्या उनका नाम है, शान शाहिद का नाम मैंने भूल गई। Shan is coming with Bulla. बुल्ले Hmm. भी आ रहा है, बुल्ला भी आ रहा है ना, है ना? Hmm. You'll be surprised. He's coming back into his kind of like macho man Punjabi, right? Oh my So God, he let's should not have ever left yeah. that era, that arena that he's left just rotting. He should have just continued mamaking films. चलो But आगे लेकिन something morally and ethically sound this time, ना? let's see, So let's I see. hope so. Yeah. Also, Yumna Zaidi and Hamza Suhail will be seen in a Ramadan drama. Okay, So, and this is once again, right? You remember when Neeli Koti, हम लोगों ने teasers देखे थे, and I hmm, kept saying to everybody, rom-coms are very hard to like for people like me hmm, in the beginning, right? hmm, Then you watch a couple of episodes, तो आप hooked हो जाते हो. hmm. And it's very hard to accept that kind of manic and behavior and that zany comic behavior. पर थोड़ी देर बाद आपको ना ये होता है, इनके बगैर तो जिंदगी ही नहीं है. ये तो इतने मजे के Ah. हैं, ये क्यों जा रहे हैं? नहीं, और पता है मैं कहती हूँ ये हमें उस वक्त, हम इनको, इस वक्त भी बहुत सारे लोग हैं जो नीली कोठी को लुक डाउन अपॉन करेंगे, या इवन आगे वाले को भी देखेंगे, या यमुना को कहेंगे कि ये ऐसा क्यों करी, बट आई एम टेलिंग यू दीज काइंड ऑफ शोज आर
सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट लाइक जैसे हम लोग मिस करते हैं, अभी हम्म। भी मैं कहती हूँ वी आर मिसिंग चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग, वी आर मिसिंग एल्डरली प्रोग्रामिंग, वी आर मिसिंग प्रोग्रामिंग फॉर ओल्डर वुमेन। हमारी Hey, that's such a good point. I am so hoping ये वाला जो है ना, जैसे जिनकी शादी उनकी शादी था ना, it captures that children's audience as well. हाँ हाँ। तो मैं Hmm. जैसे जैसे मुझे किसी ने कहा यार मुझे ना अच्छी फनी ड्रामा बताएं। And intelligent. Will इंटेल be again, ऑब्वियसली the ऑब्वियसली best children's shows are very intelligent. Bhai, I'm telling you the kind of shows that Hmm. I've loved, like Doctor Who. They're Hmm. very intelligent shows. They are very, very bright and they're ridiculous because there's a time traveling Yeah. time lord who travels in a Lot of phone booth. physics in them, right? But a lot of physics, history, a lot of philosophy about time, about choice, about life, about humanity, Hmm. compassion, and once again, what makes a villain a villain? Vanity. So I Hmm. mean, Doctor Who was a brilliant series. And So now we miss this on Jami. Jami ki vanity is vanity, unconquerable. है ना? unconquerable, and what you may have always noticed about certain villains is that their vanity becomes their fall, you Hmm. know and because they are so, अब जैसे डॉक्टर हु की मैं इसलिए बात करी थी वैनिटी में, उसमें एक लेडी कसांड्रा होती हैं, शी इज लिटरली सो फुल ऑफ लाइक प्रोसीजर्स दैट शी इज लिटरली दिस ब्लॉब ऑन द wall. She's a silicon blob on the wall. So I think that, and that's the beauty of a drama, of a show, a series like Doctor Who. It's still going on. It's like 10, 15, और बचपन से मेरी अम्मी ने देखा था डॉक्टर हु। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपको ड्रामा बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाना है, बढ़ाएं, लेकिन इंटेलिजेंटली बढ़ा लें। वो च्युइंगम की तरह स्ट्रेच कर देते हैं, ना उसमें जायका रहता है, ना उसमें मैसेज रहता है, और बर्बादी पे बर्बादी। I have noticed that you can stretch it with children's stuff because you can, like in Jinki Shadi, Unki Shadi, they could have made it a little longer. I हम्म। think. Like, because they didn't have to rely on the tropes that say, I think that the reason why for they didn't, older. because जिनकी शादी उनकी शादी was an experiment. So they Hmm. weren't expecting it and they wanted to keep it to that so that they would know कि okay इस तक हम चला सकते हैं ये चीज़। I think that is what I, because मुझे जो ग्रेप वाइन से सुनने को मिला या जो कुछ सोर्सेज में मुझे पता चला वो ये था कि they were waiting to see I'm how this would always, do. I'm हाँ, they always. were basically जिनकी शादी उनकी शादी was a test project. They were अच्छा. piloting it, they were wanted to see how this did, because हॉरर कॉमेडी इतनी, मतलब सिनेमा में चलती है हॉरर कॉमेडी, वैसे चली है बहुत हॉरर कॉमेडी, लेकिन टेलीविजन पे हॉरर कॉमेडी आप नोटिस करें बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, और जो हुए फेल हुए। तो वो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो हम टीवी ने किया, क्योंकि Okay. हम टीवी चाहता था देखना कि ये कैसे जाएगा। जब उन्होंने देखा कि अच्छा अगर ये अच्छा चल गया तो फिर हम इस तरह की और चीज़ें वेंचर इसमें करेंगे। Please, please, मेरी बिल्ली. हाँ। You know what? I think we've had a few Jin focused dramas. There was We have one on Hum TV जो सारा खान की छोटी बहन है, उनका नाम मैं भूल गई हूँ. नूर खान। Noor Khan. She's हम्म। not the world's greatest actress, but I think she did her best. It was about a family and this girl, and she knows a jinn bachpan se, right? हम्म। And she becomes a huntress of jinns. Now, for some reason, that no, because they got into this whole That was shad. so nice. Huh, that's a It great was premise. actually a very good drama serial written well, but I think you need for something a genre like this need a big star pull, right? It was Two things, actually, yes. Star pull yeah. and good, Mm. good knitted project executed well. I think all of these things are important. I want to go back. I can't remember the name. If anybody can remember the name of that show, because she knows this jinn बचपन से उसका साथी होता है, and Hmm. then that jinn takes over this boy's soul and वो कैसे Are you उनकी. talking about Chalawa? Yes, Yeah, that's it. of course. I've watched it. I used to love it. Chalawa. Yeah, but for some reason it didn't have, because there was no humor. I think it was There was too. no humor. Yeah. Also, it was constant horror. Ali Ansari था ना हीरो अली उसका अंसारी था ड्रामा का. वो, जी There you उसमें वो go. भी थी, There you go. Hmm. नवीन वकार थी उसके अंदर। नवीन वकार होती हैं, एंड आई Yeah. थिंक शमून अब्बासी उसकी प्लेज mom, वन ऑफ द, mom हाँ द बनती है. मॉम, या And I have a feeling that Shimon Abbasi was involved in the writing. I can't पॉसिबल, remember बिकॉज now. शमून अब्बासी हैज दैट थिंग Yeah. फॉर हॉरर एंड द Jinn and मकाब्र। horror हाँ हाँ stories, हाँ हाँ right? हाँ, So नो नो नो। please, actually that was a brilliant concept. दैट Ke वाज अ like वेरी गुड, दैट वाज अ वेरी गुड शो। she has the power to hunt jinns. And हम्म। then, of course, I mean the professor, उनका नाम है जो हो अदनान, मैं आजकल अदनान एकदम. जाफर। Yeah.
व्हाट एन इविल प्रोफेसर, वो जिनों को काबू करते हैं ना। या एक्चुअली दैट हैड सम ब्रिलियंट एलिमेंट्स इन इट, आई एंड थिंक दिस रिकमेंड वाज टू गो बैक। 2022, Yeah. 2022। तो वही It मैं आपको बता actually, रही हूँ ना कि वो उनके नीली जिंदा है के बाद आई थिंक एक्सपेरिमेंट्स हुई नहीं, एक दो हुई जिसमें ये नैन तारा यहाँ रहती है, वाज विद आमना इलियास, एंड दैट वाज अ टेली and फिल्म। बेलापुर की डायन। बेलापुर की डाइन तो बहुत पुराना है, दैट इज लाइक 6 7 years ओल्ड, और वो उस वक्त अमर खान का डेब्यू उससे हुआ था। और बेलापुर की डाइन इज अ वेरी गुड शो बाय द वे। बट अगेन यू नो लाइक यू सेड इट वाज अ डिफरेंट जॉनरा, इट्स प्रॉपर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा। लेकिन जो जिनकी शादी उनकी शादी थी वो था हॉरर कॉमेडी। तो हॉरर कॉमेडी को टच करने के लिए थोड़ा सा ये लोग डरे हुए थे, और फिर जब ये फाइनली इन्होंने चलाया तो ये इतना बड़ा मॉन्स्टर हिट निकला, पन इंटेंडेड। तो जो मुझे लगता है वो वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि बिकॉज इट हैड द वहाज पुल एंड इट वाज सो लाइक सो यू गुड। यू नीड, जो पतली सी स्क्रिप्ट होती है ना, समटाइम यू नीड दैट स्टार पावर टू पुल पीपल इन। आई एम टेलिंग या यू अबाउट वहाज, वेरी इट फ्यू। वोंट हैव वर्कड, बट आई एम टेलिंग यू वहाज एज अ स्टार Well, and एंड Sahar. वहाज Let's एज अ, not miss Sahar because they're both of super. course, of course, Yeah. but I'm telling you another thing also. Mm. Wahaj as a star is a star. I get it. But Wahaj as an actor and his comedic timing for Jinki Shadi Absolutely. Unki Shadi is what really made it work. Like, I'm not saying that his stardom didn't help. Of course it did. But I'm saying that for a drama like this, you have to have an actor, like we kept talking about it, you have to fully commit to the stupidity of somebody like Ali Chaudhary. You know, And he did. my art teacher used to, when I used to get very upset, oh, Cezanne, the various painters, impressionists and whatever, Hmm. and you say, why, I don't understand this, because they Hmm. reconstruct images and all kinds of Hmm. things. Because you have to know the rules to break the rules, right? Hmm. And I think with good actors who can do comedies, they can, Wahaj serious roles kitna karte hain, right? Hmm. I Hmm. mean, जो बिछड़ गए, amazing, right? Hmm. उसकी एक्टिंग उसमें. So when it comes to breaking the rules and acting goofy and funny, like they Hmm. need him to do stuff and he keeps going to sleep, right? तो वही मैं कह रही हूँ ना कि जो ये इस तरह का अबैंडन वाला जो रोल होता है, Hmm. या जो इस तरह Where की चीज you होती है don't care about your where you image. don't care and you have to step down from that mantle of that superhero boy, या that boy who's like, oh, I'm Cool. मुर्तसिम शॉल बॉय, you know। Hmm. तो वो एक अच्छा एक्टर ही कर सकता है, वो एक कमिटेड एक्टर ही करता है ना, Oh, वहाज इज I'd दैट love एक्टर। to see Bilal Abbas do something like that. I Bilal think would be he's amazing. amazing at comedy. Bilal I think would this is throw it something out of the he park. hasn't touched, right? Yeah. Yeah, Bilal would throw it out the web, but Bilal won't do it because इश्क मुर्शिद के बाद और अब इस मॉन्स्टर हिट के बाद बिलाल अब्बास को उसके लोग यही मशवरा देंगे, या मुझे तो लगता है उनको यही मशवरा मिला है कि बेटा यही करे जाओ, अब तुम Okay, let's see. कामयार हो। Akhir, he did Ishq Murshid, which was like, there was a lot of comedy in that. I thought it was very sweet. And बट that's what, ये जो वो नहीं खट्टा मीठा पान होता है, that's what बट Murshid said. बिलाल इज वेरी गुड एट कॉमेडी, लाइक इफ यू रिमेंबर Yeah. प्यार के सदके, और इफ यू रिमेंबर और अंग्रेज़ा, तो बहुत उसमें कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जो बड़े फनी थे, बड़े लाइट थे, बड़े ज़बरदस्त थे। तो वो ही इज़ अमेजिंग ऑन दैट, ही इज़ Definitely. अमेजिंग इन एज कॉमेडिक टाइमिंग। बट एनीवेज इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू गाइस आर वाचिंग गाइस, तो हमें बताइएगा, हम एक और पाकीज़ा हम एक और सेशन करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे कुछ शोज़ के ऊपर। आप लोग बताइएगा आप लोग क्या देख रहे हैं। सदफ, इज देयर एनीथिंग एल्स यूड लाइक टू ऐड? No, that's good. And we'll definitely carry on with Meri Sar Khapai Hai Tu. Because मेरी I'm sure Radhen Shah is going to come up with something na, for me. हो मेरी फ्रस्ट्रेशन है तू, और मेरे सर का दर्द है तू, पता नहीं क्या है तू। एनीवे गाइस, गो इजी ऑन रेडिट एंड गो इजी इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सदफ, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस, फॉलो सदफ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। खुदाफिज।